Right. Good evening, everyone. So let's start the discussion on the Union Budget 2025-26. Now, whenever a budget comes, so I kind of break it down into two parts. One is the schemes, the outlays, some major announcements, um, which are maybe not that quantifiable or presented as a kind of a figure as such, but um, more in terms of broad uh, kind of outlays or broad pointers. And then there are hard facts, right? Numbers which are there. So uh, we should be more hands-on on those numbers. Okay, fine. If somebody asks you that okay, what are the major takeaways? Maybe you can talk about a few of the outlays and few of the salient points. But those are again like many times जुमलाज as we say. जैसे अगर हम इस वाले पर्टिकुलर बजट की बात करेंगे तो मुझे उसमें से दिस इज द एक्रोनिम, राइट? सो दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सम एक्रोनिम्स. तो ये ज्ञान मुझे मिला उसमें से. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस ज्ञान आई एम टॉकिंग अबाउट? लिटिल फनी बट ज्ञान मिला हमें. Yuva, sir. Y for Yuva, I guess. वाई फॉर युवा, वेरी गुड. N एंड for Nari. एन फॉर नारी, यस. A A for for agriculture. Annapurna, A for Annadata. ए फॉर Annadata. अन्नदाता, वेरी गुड. And G for Garib, I जी guess. फॉर गरीब, यस, करेक्ट. तो इस तरीके की जुमलेबाजी होती है उसमें. तो I mean, the whole thing is that they kind of wanted this to be centered around these four areas. So, couple of schemes here, then 3-4 points here. So, in all, let's say 10 points if they are trying to give, then 2-3 points here, and then 2-3 points here. So that's why. So that's like their, just to play to the gallery. So this is one part of it, but then the second part is obviously much more crucial, which talks about hard numbers and all. So anyway, we'll take a look at both because we should not miss any important point. Okay, and then some of them we'll talk about a little more in detail because they may form a part of the interview going forward. जो अब आप, जो आप immediately next this week में या next couple of days, whoever is facing the interview, so most likely उसमें कुछ ना कुछ बजट के ऊपर पूछेंगे, राइट? अगर नहीं पूछा ठीक है, कुछ लोग नहीं भी पूछते, बट इन जनरल आई वुड से देयर इज अ probability of budgets being discussed in that, right? So let's now look at some of these, right? So इसमें दोनों पार्ट कवर करेंगे. So we'll go from the basic. Okay, just a few pictures here that she carries this red bahi khata style pouch ahead of this, and then her team, right? उसकी टीम है ये. नॉर्थ ब्लॉक इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में. नॉर्थ ब्लॉक राष्ट्रपति भवन के पास में. एंड देन दे गो टू राष्ट्रपति भवन एंड गेट द ब्लेसिंग्स. ये सारे बॉक्सेस, ये सारे पेपर्स होते हैं, राइट? दीज आर ऑल पेपर्स व्हिच आर टेकन, बट ऑब्वियसली शी प्रेजेंट्स इट फ्रॉम हर टैब और व्हाटएवर इट इज which is contained in this. And then they kind of take the blessings of the president, who feeds usually dahi chini, right? The auspicious occasion. So ये सब खिला के इनको भेजा गया. And then 11 o'clock this budget was presented, right, on Saturday, which is day before. Now just a few facts about it. Constitutional provisions, right? So in the constitution there is no mention of the word budget. Okay, constitution does not refer to this whole thing as a budget. It calls it the annual financial statement, right? So budget basically क्या है, आपसे कोई भी पूछ सकता है किसी भी इंटरव्यू में कहीं पे भी, that what is the budget. So budget is basically an annual financial statement. I mean, you can have a monthly budget also, you can have a daily budget also, that's a different issue, but budget basically is a financial statement that contains your receipts and your expenditures, right? On a broad level, what is the money that you are going to receive. So suppose you want to make a personal budget, तो आपको कितना inflow होगा from different sources, right? You will have different sources. So somebody who's maybe employed with a company could be getting a salary, then maybe they've made certain investments, so they could be getting the interest or maybe dividends or maybe something else. Then there could be some rental income, some assets you own, right? So all of these could be your income sources, right? So all of those sources of income, and then the expenditures, right? So maybe your
day-to-day living expenses, your basic, your rent, your food, your clothing, your transportation, those kind of stuff. And then there could be maybe you are going to buy some assets or you are paying some EMIs, right? So all those are expenses. So budget is basically the annual financial statement of the central government, right? The union government. हम यहाँ पे अभी हर स्टेट का एक इंडिपेंडेंट बजट होता है. ओके, ईच स्टेट हैज इट्स ओन बजट, सो दैट्स डिफरेंट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट. ये आर्टिकल 266 में दिया गया है. आई मीन और कुछ नहीं मिलेगा उनको. इसी कैप वैप के इंटरव्यू में कभी पूछ सकते हैं वो कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, क्या है. तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो सी एनी गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड एनीथिंग, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से स्पेंड करना पड़ता है और उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए. यस अरमान. सर अगर ऐसे पूछे कि बजट बजट कौन बनाता है तो लाइक वो भी फाइनेंस आएगा, मिनिस्टर का वो भी नाम आ रहा लेना है है. या फाइनेंशियल हाँ जी, कमेटी? नहीं वो भी आ रहा है अगर भाई, ऐसे पूछे अभी अभी आ रहा है वो. जस्ट आई एम जस्ट कवरिंग दैट ऑल्सो. ओके. So, Article 112 in the Constitution deal with financial matters, and then besides this, this states that no amount can be withdrawn from the consolidated fund without the enactment of a law. तो अभी ये बजट जो है ये प्रेजेंट किया जाता है, फिर ये पास होता है. दिस बजट इज प्रेजेंटेड एंड देन पास्ड इन द पार्लियामेंट. उसके बाद में फिर ये इफेक्ट में आता है. ओके. Now, why budget matters? Obviously, because unless the government lays down what it is going to do with the money that you have given as a tax or whatever else the money it is going to receive, so it can't. Right? You need to know as a citizen what the government plans to do with your money. Though you don't have any control, but at least you need to know what the government is going to do with your money. कौन प्रिपेयर करता है? So the question is, so Department of Economic Affairs है, DEA, okay, which is in the finance ministry. So this is the nodal body responsible for preparing the budget. ये पूछ सकते हैं आपको, right? That who prepares the budget? So there is a budget division in DEA, and that is a part of finance ministry, and they prepare the budget. Okay. So I hope that answers your question. Now, I mean, just a bit of a trivia that who has announced or who has presented the maximum number of budgets so far. So Morarji Desai, who was also a Prime Minister of India, he had presented 10 budgets. Chidambaram, who was a finance minister in Congress reign, he had presented 9. And Nirmala, of course, this was till yesterday, till day before. Now she is at this position with her 8th budget. Right? So she has presented 8 budgets, and then Pranab Mukherjee and all this. So again, a trivia, but you never know. In लोगों को अगर कुछ पढ़ के आए तो they might ask. So that's the small statistic. And then longest budget speech so far has been Manmohan Singh's landmark budget, which was 1991, जब हमारा LPG हो गया था, liberalization, privatization, and globalization. Right. So that time it was the longest. And budget speech in terms of hours, it was Nirmala who presented about 2.42 hours. So this is just a small bit of a trivia. Okay. Now, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट करने क्या वाली है, राइट? What is their focus in this particular budget? So one is to accelerate growth. So we all know that we are struggling with growth challenges, growth pangs. Okay. So our last quarter growth was how much? देखो थोड़े से नंबर्स भी रिफ्रेश करने पड़ेंगे as we go along. What was the last quarter? अभी इस क्वार्टर की ग्रोथ के नंबर्स नहीं आए हैं, बट लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ कितनी थी बताइए. सर 5.4. 5.4%. वेरी गुड. तो जैसे ही ये 5.4% ग्रोथ आई थी तो पूरी दुनिया नहीं, मतलब हिंदुस्तान हिल गया था. और उसके बाद में फिर जो रिवाइज एस्टिमेट्स आए, राइट? सो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो आए थे ऑन 7th January, सो दे सेड दैट 6.4%, राइट? RBI जो था वो बोल रहा था कि 6.6% होगी इस साल की, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि 6.3% होगी, राइट? अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें उस दिन, राइट? तो इकोनॉमिक सर्वे से इसकी हम 6.4 से 6.8 ग्रो करेंगे अगले कुछ 10 सालों में, ऐसा करके उसका एस्टिमेट है, राइट? सो इट इज ऑब्वियसली नॉट ग्रेट थिंग टू बी, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड बी, अगर जैसे चाइना का अगर हम देखें कि चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, तो बिकॉज दे हैड डिकेडल ग्रोथ ऑफ ओवर 10%, राइट? उनका तो डबल डिजिट ग्रोथ हुआ था, राइट? अब इसमें एक चीज और, सी आई एम जस्ट
maybe some of you might find this repetition, but I've seen in the mocks many times that people are not able to answer these simple questions also. So इसलिए थोड़ा सा reiterate भी करते चलेंगे हम कि तीन तीन चीजें होती हैं, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी और एक पीपीपी। ओके, तीन टाइप की जीडीपी होती है। तो जब हम बात करते हैं, हमारी इंडिया की अभी जीडीपी कितनी बताई जा रही है? सर $4 trillion. चलो $4 ट्रिलियन मान लिया, 4 ट्रिलियन मान लिया। तो ये 4 ट्रिलियन रियल जीडीपी है कि नॉमिनल है कि पीपीपी वाली है? Sir, nominal. This is nominal GDP. But when we talk about the growth rate, this growth rate is real GDP growth rate or nominal growth rate or PPP growth rate? The real. Sir, real. This is the real GDP growth rate. Okay, देखो ये पॉइंट क्लियर कर लेना आप लोग, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना? सो this is the real GDP growth rate is given real GDP, but the figure which is presented up to us is $4 trillion. Okay, now another thing that we should know is the conversion into lakh crore, क्योंकि ये बहुत बार होता है कि आपको वहां पे घुमाने के लिए, मतलब मैंने कई इंटरव्यूज में सुना है, लोगों ने बताया कि अच्छा लाख करोड़ में बताइए, अच्छा इसमें ट्रिलियन में बताइए कितना है। तो $4 ट्रिलियन को ऑब्वियसली अभी डॉलर का कितना है, डॉलर कितना हो गया है? 86.7. 87 क्रॉस कर चुका था, 87 हो गया। 87.29 छू गया था। 87 ओके, तो 87 से आप रफली, अभी 87 ठीक है, आप बोल सकते हो उसको कि रफली 320 ट्रिलियन बोल सकते हो, 320 लाख करोड़ बोल सकते हो आप रफली। ठीक है, दो इस पे तो ज्यादा हो जाएगा, बट 4 ट्रिलियन भी थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, 3.8। तो जो भी, आप तो 320 लाख करोड़ करीब बोल दो कि उसको हमारी हमारी जीडीपी 320 लाख करोड़ है। देखो 1 ट्रिलियन जो होता है नंबर, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। ओके, ये भी हमें पता होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर रुपी डॉलर फॉर कुछ नहीं, 1 ट्रिलियन एज अ नंबर इज इक्वल टू आर, ये जो नंबर्स होते हैं तो इंटरनेशनली इसको ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन और थाउजेंड्स में बोलते हैं। तो ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, बिलियन में 9 जीरो होते हैं, मिलियन में 6 जीरो होते हैं और थाउजेंड्स में 3 जीरो होते हैं। लाख करोड़, हमारा सिस्टम थोड़ा अलग चलता है, करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं, लाख के अंदर 5 जीरो होते हैं। तो 5 और 7 मिला के 12 हो गए, तो 12 मिला के 12 1 ट्रिलियन हो गया, राइट? तो 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़। तो देयरफॉर इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 80 से, तो वी गॉट द 320 लाख करोड़। Okay, so this we should know, because there are many other numbers which are shown as a percentage of GDP. तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ जीडीपी पता नहीं है, कितना है, और जीडीपी नहीं पता है, तो हम इधर उधर घूम जाएंगे तो उसमें, राइट? सो वी शुड बी एबल टू कीप दिस थिंग्स इन आवर माइंड। ओके, ये सब फिगर्स हमें होल्ड करने चाहिए माइंड में। ऑलराइट, सो एक्सेलरेट ग्रोथ करना है, दैट इज द फोरमोस्ट जॉब, राइट? सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नाउ वी आर सीइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट इनकम इनइक्वालिटी, राइट? इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर जिसको देखो आजकल यही बात करता रहता है। तो इनकम इनइक्वालिटी जैसी चीज बढ़ती चली जा रही है, तो वो नहीं होनी है हमें। तो वी शुड वांट अ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नाउ गवर्नमेंट इज ऑफ कोर्स quite upset with the private sector. I don't know, I'm not saying justifiably or unjustifiably. That is because the government had reduced corporate tax rate significantly, right? आपको अगर पता हो कि 2019 का जो बजट था उसमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट को बहुत कम कर दिया गया था। Now, why did the government do? The government does this, of course, in anticipation that the corporates will be left with more money and they will be able to raise their investment. अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 सालों में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम हुआ है, राइट? ऑफ कोर्स कोविड आ गया था बीच में, तो कपल ऑफ ईयर्स वेंट बाय, बट उसके बाद जो गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है। अब अगर हम फिर से बात करते हैं और जीडीपी की, ये चीज फिर से हमें टॉप ऑफ द माइंड रहनी चाहिए कि जीडीपी कैलकुलेशन के 3 तरीके होते हैं। ओके, देयर इज द इनकम मेथड, देयर इज द प्रोडक्शन मेथड, देयर इज एक्सपेंडिचर मेथड। मोस्टली हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हैं। अब देखो, ये नहीं बोलना कोई भी कि यार हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है तो हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है। आपसे अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हो, जो आप साइंस के स्टूडेंट भी हो, इतना हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम एमबीए का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं और एमबीए करने जा रहे हैं। ओके, तो इकोनॉमिक्स वालों को तो ऑफकोर्स डेप्थ में पता होना चाहिए, बट जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। तो जीडीपी को हम एक्सपेंडिचर मेथड से जनरली कैलकुलेट करते हैं सबसे ज्यादा, और उसका फॉर्मूला होता है C+I+G+NX। ओके, C इज द प्राइवेट कंजम्पशन, I is the private investment, G is the government capital expenditure and net exports। ओके, इसमें सबसे बड़ा पोर्शन इंडिया का अगर देखा जाए तो 60% करीब करीब कंजम्पशन का होता है, करीब करीब 25 से 30% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, और 10% ये होता है, ये तो कुछ होता नहीं, हमारा तो नेट एक्सपोर्ट उल्टा है। तो ये कम है, राइट? और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो जीडीपी बढ़ेगी कहाँ से?
तो गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करे चले जा रही है। सपोज ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने भी लास्ट ईयर जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 1 लाख करोड़ कम किया था, ये भी बताया गया इस बजट में। बट स्टिल दे आर डूइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट पिकिंग अप। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो हैज नॉट पिक्ड अप। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले बोलते हैं कि हम क्या इन्वेस्ट करके करेंगे अगर कंजम्पशन ही नहीं होगा। तो हमने अगर एक प्लांट और लगा दिया, एक फैक्ट्री और लगा दी, तो उसको खरीदेगा कौन? लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो लोगों को पैसे देने के लिए सरकार ने एक बार टैक्स में रियायत बहुत सारी दे दी है, जो कि हम बात करेंगे अभी। ओके, सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट, राइट? सो दिस इज अगेन was one of the major objectives which was fulfilled by reducing the income tax rates and slab को जो चेंज कर दिया। तो दैट वाज अ वेरी बिग मूव। ओके, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। जो मतलब इनफैक्ट जो लोग इनके सपोर्टर्स हैं, दे वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग टू दिस एक्सटेंट। सोच रहे थे लोग 7 लाख से 9 लाख कर देंगे, 10 लाख कर देंगे, तो सीधे उठा के 12 लाख कर दिया, विच इज अ big step. Okay, so enhance spending power of India's rising middle class. So these are all the challenges which the budget tries to kind of address, right? Now, अभी जो ग्रोथ की बात हो रही है, तो ये ग्रोथ जो है ऑब्वियसली नाउ दे विल काइंड ऑफ पुट द ब्लेम। अभी नेहरू नहीं है तो ठीक है, वी कैन पुट द ब्लेम ऑन जियो पोलिटिकल हेडविंड्स, एंड विच इज ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट ट्रू दैट जियो पोलिटिकली, और अगर आप देखें ग्लोबली, जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें जिस लेवल की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, बिकॉज ऑफ मल्टीपल वॉर्स बीइंग फॉट, बिकॉज ऑफ यूरोप और सर्टन इकोनॉमीज बीइंग इन बैड शेप। यूएस इकोनॉमी वाज रेजिलिएंट, पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो इनटू अ रिसेशन। एक पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा था, लेकिन वो रिसेशन में फिर भी नहीं गई। तो बट स्टिल द अदर इकोनॉमीज वर नॉट डूइंग वेल, चाइना वाज डूइंग प्रीटी बैडली। तो जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स थी, इसके कारण हमारी ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बेकार थी, तो हमारी भी खराब हुई। लेकिन हमारा एस्पिरेशन है विकसित भारत का। अब ये विकसित भारत क्या है, नहीं? तो देखो, जो एक, अब नाउ सपोज वी लुक एट इट एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं दैट डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी होती है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी इज वन वेयर द पर कैपिटा इनकम इज, उसका एक थ्रेशोल्ड है रफली $22,000। लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो है हमारी वो $2,600 पे रो रही है हमारी पर कैपिटा इनकम। तो वी नीड टू बी 9 times अप, बट दे आर नॉट कॉलिंग दिस विकसित भारत एज द डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर विल रीच दिस। व्हाट दे आर सेइंग इज कि विकसित भारत हम किसको कहेंगे? तो हम विकसित भारत इन चीजों को कहेंगे कि जीरो पॉवर्टी होनी चाहिए, राइट? 100% क्वालिटी गुड स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होना चाहिए, 100% स्किल लेवल विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, 70% women in economic activities, and farmers making India the food basket of the world. So these are certain parameters that they have identified. Per capita is 2940 at present. चलो आपकी बात मान ली मैंने, चलो 2940 कर दो उसको, ठीक है? आई डाउट दो, बट ठीक है, मे बी। तो जो भी है, चलो, तो प्रशस्ति इज सेइंग दैट दिस इज 2940। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 2940 कर दो। वी विल डिस्कस सेपरेटली कि ये वाला कहाँ से आया फिर, बट जहाँ से भी आया चाहिए। तो ये सबको हम मान रहे हैं अबाउट विकसित भारत अगर हमें करना है तो ये सब चीजें अचीव करनी पड़ेगी, ठीक है? तो दैट्स देयर प्रॉमिस। तो अब ये करने के लिए ये बजट जो है वो 6 डोमेन में फोकस कर रहा है। टैक्सेशन, राइट? सो एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, पावर सेक्टर, राइट? पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पावर सेक्टर में of course many developments have already happened, plus we are moving more and more towards renewable or non-fossil fuel based uh, uh, power generation, and इस वाले बजट में पर्टिकुलरली उन्होंने न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी फोकस किया है, राइट? अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दे फोकस्ड ऑन न्यूक्लियर पावर। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। द गवर्नमेंट वांट्स, देखो पावर सेक्टर में एक चीज ध्यान रखो, हमारी जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है दैट इज रफली 500 गीगावाट करंटली। गीगावाट आवर्स बोलो या जो बोलना है उसको, रफली रफली, ओके? दिस मतलब 480 4670 ऐसा कुछ है। उसमें से रफली 50% इज अबाउट इज कोल। ओके, ये कोल पहले बहुत ज्यादा होता था, 60-65% होता था, लेकिन अब कोल जो है वो करीब 50%, 50-52% रह गया है। एंड द टारगेट इज दैट बाय लेट्स से 2030 हमारे पास में 1000 गीगावाट की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसमें से 500 गीगावाट होना चाहिए रिन्यूएबल का, और उसमें से 250 गीगावाट
हमारे पास होना चाहिए सोलर का। तो सोलर में आपको पता है बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन अभी सोलर की कैपेसिटी करीब 100 गीगावाट है हमारे पास। मतलब अभी हमारा 20% रफली पावर जनरेशन, 21% रफली अगर हम देखें तो वो सोलर पावर है इंस्टॉल कैपेसिटी, जो कि हम बनाना चाह रहे हैं 250 गीगावाट बाय 2030। लेकिन गवर्नमेंट जो है ये जो 100 गीगावाट लाना चाह रही है न्यूक्लियर पावर, ये ऑफ कोर्स 30-30 तक नहीं होगा, ये चाह रही है 2047 तक। ओके, जब हम विकसित भारत बनेंगे ऐसा बोलते हैं। तो अभी बहुत कम है, अभी न्यूक्लियर पावर सिर्फ 6.8 गीगावाट ऐसा कुछ है, विच इज वेरी, विच इज जस्ट 1.5% भी नहीं है, 1.44% समथिंग ऑफ द पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो न्यूक्लियर पावर के ऊपर काफी फोकस आ गया है इसमें कि हमें न्यूक्लियर एक स्मॉल और मीडियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो अप्रूव करें उन्होंने, कि वो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी अप्रूव किया है। तो there'll be a lot of focus on nuclear power. Okay, because nuclear power is in some ways a better nuclear fuel than solar and wind, because solar and wind are dependent upon the atmospheric conditions. तो कई बार उसमें हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर आ जाती है, जबकि न्यूक्लियर में ऐसा कुछ नहीं है। बट न्यूक्लियर का जो फ्लिप साइड आपको पता है सबको, आप लोगों ने चेरनोबिल करके एक सीरीज अगर देखी होगी, या फुकुशिमा जो जापान में सुनामी आई थी 2011 में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो था उसमें खत्म हो गया था, एंड दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो न्यूक्लियर में वेस्ट हैंडलिंग इज अ बिग इशू। न्यूक्लियर पावर में सबसे बड़ा इशू होता है न्यूक्लियर वेस्ट। अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, वहाँ का जो वेस्ट था, उसको दैट वाज नॉट न्यूक्लियर वेस्ट, बट दैट वेस्ट वाज बीइंग टेकन टू इंदौर के पास में एक पीतमपुर है, वहाँ पे तो काफी हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो ये न्यूक्लियर पावर के वेस्ट को हैंडल करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। तो पावर सेक्टर में काफी फोकस है, राइट। सो वी कैन टॉक अबाउट दीज। जो लोग इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, जो लोग इस तरह के उसमें जॉब्स हाउस में है, तो दे उनसे ऐसी चीजें पूछी जा सकती है थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में। ओके, देन वी हैव दी अर्बन डेवलपमेंट। तो एज वी नो दी अर्बन सिचुएशन इज प्रिटी पैथेटिक। ऑल द सिटीज वी नो आर क्रम्बलिंग अंडर द वेट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल देयर। इनफैक्ट जो मेजर हमारे मेट्रोज हैं एंड इवन द अदर tier 2 kind of cities, urban infrastructure is in a pathetic condition. ट्रैफिक हमें पता है क्या हो रखा है, जो कंडीशन ऑफ रोड्स एंड अदर थिंग्स, तो उसको सबको सुधारने की बहुत जरूरत है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, बहुत सारी चीजें चाहिए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो उसको फोकस करेंगे। माइनिंग सेक्टर जो है, माइंस, सो वी आर क्वाइट एंडाउड विथ नेचुरल रिसोर्सेज, बट माइनिंग में हमें पता है कई बार जैसे माइनिंग में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। सो माइनिंग के ऊपर फोकस है। फाइनेंशियल सेक्टर इज अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट, राइट, कोई भी ग्रोथ के लिए क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्रेडिट जो है वो आपको एट द लोअर मोस्ट लेवल तक मिलना चाहिए। माइक्रो क्रेडिट, राइट, माइक्रो फाइनेंस, देन इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए काफी सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है, करी भी है पास्ट में। आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब इन terms of जनहित, जनधन accounts and direct DBT, right? These are some of the things that they have done. But ये जनधन अकाउंट जो है, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि because of this creation of crores and crores of these accounts which are almost like in dormant situation many times, तो ये जो हमारे scams और frauds हो रहे हैं, right? These are basically on account of these। मतलब इन लोगों को कोई भी इनके अकाउंट ले लेता है जो धन वालों के, और उसमें फ्रॉड करता है और फिर भाग जाता है और मनी ट्रांसफर कर देता है। तो इसको भी पकड़ने के लिए आरबीआई काफी कुछ कर रही है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन, बट दिस फाइनेंशियल सेक्टर इज अंडर ग्रेट डील ऑफ फोकस। एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो अगर हमने इकोनॉमिक सर्वे उस दिन देखा था या पढ़ा था, तो इकोनॉमिक सर्वे में एक बात बोली गई है कि जो इंडस्ट्री को डी रेगुलेट करना पड़ेगा। डीरेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टुडे द गवर्नमेंट जो है वो काफी सारे रेगुलेशंस लेके लाती है, पर्टिकुलरली जो स्मॉल कंपनी, जो स्मॉल एमएसएमई सेक्टर है हमारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इसको बहुत तंग करती है गवर्नमेंट। जरा जरा से अलग अलग टाइप के, आप अगर कोई भी बिजनेस सेटअप करते हो तो उसमें 50 रूल्स होंगे, राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड दे लीड टू लॉट ऑफ करप्शन ऑल्सो, राइट। एंड पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, कभी भी पुराना उठा के कुछ भी उठा के दे देते हैं। तो डीरेगुलेशन करने की जरूरत बताई गई थी, तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाए गए। इनफैक्ट इसी डायरेक्शन में, इफ यू हैव रेड, आईटी का बिल आने वाला है, इनकम टैक्स बिल। ओके, दे हैव नॉट come out with it in the budget, but they said that they will bring it out in a week or so. So they will reduce the complexities. अभी क्या होता है कि
आपको अपना इनकम टैक्स खुद फाइल करना होता है. आई एम श्योर सम ऑफ यू मे बी फाइलिंग योर इनकम टैक्स ऑन योर ओन, right? It should be simple, but the point is that there are many different kind of forms, then there are many different kind of rules. If your income is again straightforward salary मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है तो still आसान है उसको करना. But if you've got multiple sources and you are investing in capital assets, selling and buying and all, तो then it is not that straightforward. तो उसके लिए फिर किसी को सीए के पास जाना पड़ता है, किसी को किसी और के पास जाना पड़ता है, तो वो सब अब. और फिर उसमें कोई सा भी क्लॉज निकाल के शो कॉज दे देते हैं, इंक्वायरी आ जाती है. तो वो सब धीरे धीरे कम करना है इनको. तो रेगुलेटरी रिफॉर्म की जरूरत है हर सेक्टर में. तो ये सब चीजें ये फोकस कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. सो आई बीन नाउ स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फॉर द पास्ट 20-25 minutes or so. So if you have anything so far that we have discussed, please raise any point or query before we move to the next thing. बताइए, कोई है इनमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें कुछ any point that needs further clarification or query? नहीं है तो कोई बात नहीं. वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो अब जैसे ओके, अरमान है. यस अरमान, गो अहेड. सर मतलब एवरीथिंग मेक सेंस. आई एक्चुअली इवन हर्ड कि चाइना और यूएस के बीच में ना एक वो आर्टिफिशियल सन बनाने की भी रेस चल रही है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन. जस्ट वांटेड टू ऐड. Okay, yes. So other countries are in fact quite far ahead. अगर हम न्यूक्लियर वाली बात देखें तो in fact there is a question also from Sushant who's asked that क्या पूछा इन्होंने, न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट. हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट फिर से बताता हूँ, 100 गीगावाट टिल 2047. हाँ, 100 गीगावाट टिल 2047, that is the target given. Now currently we are at 6.8 गीगावाट. तो न्यूक्लियर का जो टारगेट है वो इसलिए थोड़ा ऐसा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो रिएक्टर्स वगैरह वो इतनी आसान, मतलब इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इफ पुटिंग अ सोलर पैनल, सोलर प्लांट. सोलर प्लांट लगाना कोई मतलब इट्स नॉट रियली दैट बिग अ चैलेंज, बट न्यूक्लियर प्लांट लगाना बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो इसलिए उसको 2047 तक का टाइम दिया गया. एंड यू आर राइट. देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, अगर आप यूरोप में देखोगे, डेवलप्ड इकोनॉमी देखोगे, तो फ्रांस इज वन कंट्री विच हैज गॉट ऑलमोस्ट 63% ऑफ इट्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन न्यूक्लियर. ऐसे यूरोप में कई सारी और कंट्रीज हैं जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन अपनी एनर्जी का न्यूक्लियर से करते हैं. अगर हम चाइना की बात करें, चाइना भी काफी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है. यूएस की बात करें तो यूएस का लेकिन कम हो गया. इनफैक्ट कई सारे इनके कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर सब पुराने हो गए हैं और अब वो रिप्लेसमेंट की कगार पे भी आ गए हैं. तो न्यूक्लियर पावर जो है दूसरी जगह पे तो काफी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. देन इफ यू रिमेंबर इन 2008 वी गॉट दिस फ्रॉम यूएस ऑन लार्ज स्केल, ऑन अ बिग स्केल. ओके, पर उसके बाद भी उन्होंने कुछ हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे जो कि रिसेंटली अभी हटे हैं, राइट? इसमें एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी वाला एक क्लॉज होता है जो मैन्युफैक्चर सप्लायर्स होता है. जैसे हम अपने उसमें एक क्लॉज लगा देते कि अगर एनीथिंग अनटूवर्ड हैपेंस, बिकॉज न्यूक्लियर पावर में बहुत गड़बड़ होने के चांस होते हैं, तो उसमें हम जैसे अगर यूएस से हमने टेक्नोलॉजी ली है या कहीं और से, तो हम अपना क्लॉज लगा देते कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो वो नो कंट्री और कंपनी विल टेक द ओनरशिप, बिकॉज इट्स अ ह्यूज लायबिलिटी, राइट? अगर आपका कोई न्यूक्लियर में गड़बड़ हो गई तो देन आई मीन इट कुड गो एनीवेयर. तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते. तो अब हमने भी उसको बेसिकली हटाने की वो कर दी कि ठीक है, वी विल रिमूव दिस क्लॉज. तो ऐसा करके हम पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मे कम अप इन दिस ऑल्सो. तो ऐसा सब इन्होंने बोला है. ओके, सो ये हो गया गरीब, GYA एंड नारी, ज्ञान देने की बात की हो रही है. तो स्परिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस. सो दिस इज अबाउट द अन्नदाता और किसान, टेकिंग एवरीवन टुगेदर ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग. तो इसमें यूथ को जॉब वॉब मिल जाएगी, राइट? सपोर्टिंग एमएसएमई के ऊपर काफी बड़े डिसीजन लिए गए हैं. हम डिस्कस करेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल में. एमएसएमई की जो MSME is micro, small and medium enterprises, right? These are very big pillars of our economy because they contribute to a great extent to our employment and to our manufacturing. In fact, 45% हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इंडिया में वो MSME में होती है. एंड सो इनकी जो क्लासिफिकेशन था उसके लिए नॉर्म्स चेंज कर दिए गए, थोड़े अच्छे बड़े कर दिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को MSME में लाया जा सके. अभी हम देखेंगे कि उससे क्या फायदा होगा उनको. उससे उनको काफी बेनिफिट्स होते हैं. सी दे गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. वी विल डिस्कस सम ऑफ दोस बेनिफिट्स. तो सपोर्ट करना है MSME को, enabling employment led development, right?
and investing in people, economy and innovation, securing energy supply, promoting exports, nurturing innovation. तो इस तरह से ये सब बातें की हैं उन्होंने. तो ठीक है, these are all kind of words, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा. तो आप थोड़ी थोड़ी सी जो स्कीम है वो हम देख लेते हैं. Let us look at some of the schemes here. Spurring agricultural growth and building rural prosperity. तो ये एक स्कीम आ गई है, धन धान्य कृषि योजना. Developing agri districts program to cover 100 districts and likely to help 1.7 crore farmers. Okay, so इसमें एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करेंगे ये 100 और इतने फार्मर्स को उसमें कर देंगे. तो ये एक इनका वो है. एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी, एक किसान क्रेडिट कार्ड आ गया है. ओके, अभी क्या होता है देखो, किसानों को अगर कुछ भी क्रेडिट लेना है, लोन लेना है, तो इनको काफी पहले तो ऑब्वियसली अर्लियर हमारे यहाँ पे यूजरी होती थी. यूजरी मीन्स जो सेठ साहूकार होते थे उन्हीं से ही लेते थे और एट एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. और फिर आपको पता ही है कि पुराने जमाने की पिक्चरें आपने अगर देखी हो तो कर्ज में डूबे रहते थे वो लोग. राइट, उसके बाद में इनको बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन या क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई. अब इनको और एनहांस क्रेडिट दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स विद एनहांस्ड लोन ऑफ 5 lakhs. तो ये किसान क्रेडिट कार्ड इनको दिया जाएगा जिसके थ्रू इनको ये मिल जाएगा एक्स्ट्रा. राइट, सो दिस इज वन एडिशनल थिंग दैट विल बी डन फॉर देम. कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5-year मिशन किया गया है. राइट, देन मखाना बोर्ड. ओके, मखाना इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनीवन क्विकली? सर लोटस सीड. Fox nuts. फॉक्सनट. ओके, फॉक्सनट बोला जाता है मखाने को. सो आई एम श्योर यू वुड हैव ऑल eaten it at some point of time. It's very nutritious, right? Very nutritious. It's got high protein, so it's considered to be a good snack. तो मखाना बोर्ड, बिहार is abundant with it. कोई है क्या बिहार के हमारे यहाँ? Anyone from Bihar? Sir, Yes, Priyansh. So what can you throw some extra light on this makhana? sir, only about the cultivation. The cultivation requires a pond sort of structure. So it is not land-based cultivation. It is Okay. cultivated within a pond-based structure. Okay, great. I didn't know this. So a lot of facility being given to Bihar in this budget. In fact, the opposition तो कहते हैं कि ये बिहार का बजट है. तो why is that? Anyone? Why is so much consideration being given to Bihar? Election. Okay. Sir, coalition government. Coalition. Yes, coalition requirement. Right. देखो, आपको पता ही है कि इस बार बीजेपी जो थी उसकी 400 पार करने चली थी, लेकिन 240 पे रुक गए वो. तो उनको सपोर्ट दिया गया दूसरे पार्टनर्स से, जिसमें एनटीडीपी और जेडीयू. राइट, तो इन्होंने उनको सपोर्ट किया है. तो ऑब्वियसली दे विल एक्सट्रैक्ट देयर पाउंड ऑफ फ्लेश. तो पिछले वाला जो था उसमें बजट में इन्होंने टीडीपी को कई चीजें दी थी, जो मतलब आंध्र प्रदेश को दी थी, और इस बार इन्होंने फिर बिहार को दिया है. यस स्वर्णव. Sir, I think because Nitish Kumar and his party wanted some minister's post in the government, and they didn't get that post, so they are now getting this. करेक्ट. in क्विड exchange. प्रो क्वो. राइट, वो भी एक रीजन है कि उनको जो चाहिए थे वो नहीं मिले कैबिनेट में. तो दिस इज द वे ऑफ गिविंग बैक. ठीक है, तो ये कोलिशन पॉलिटिक्स है, कोलिशन कंडीशंस है, क्या कर सकते हैं, वी कांट एस्केप. तो ये सब चीजें इसमें होंगी. मखाना बोर्ड एंड न्यूट्रिशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स is also there. Right, so these are 5 schemes. इसमें कोई अब आपको, I mean, from a perspective of interview, you don't need to really remember each one of them. Just have a top of the mind. मखाना तो है, दिमाग में बैठ ही जाएगा. कॉटन का बोल देना, और डिस्ट्रिक्ट धन धान्य केसी. इनफैक्ट ये आसान है इसको असिमुलेट करना हमारे सिस्टम में. आई डोंट थिंक दैट दीज 5 may need a great deal of effort to put it in the brain. Right, तो ये हम डाल सकते हैं. These are the steps for agricultural growth. ओके, अनदर थिंग इज आत्मनिर्भरता इन पल्सेस. देखो, ये पल्सेस जो है ये हमारे यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर है हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए. राइट, ये पल्स हम इंपोर्ट करते हैं. नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी सरप्राइज दैट हमारे देश में इतनी दालें हैं, मतलब लेंटिल्स वी ग्रो, बट स्टिल वी नीड टू इंपोर्ट बिकॉज कंजम्पशन इज ह्यूज. राइट, आर फूड वेजिटेरियन जितने भी जो लोग हैं मोस्टली, इनफैक्ट इवन नॉन वेजिटेरियन, हमारे यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हर मील नॉन वेजिटेरियन खाया जाता है. राइट, तो पल्सेस बहुत ज्यादा है. ये सेक्शन. Sir, one of the countries we import from is Canada. Yes.
और अब कनाडा जो है वो वैसे भी यूएस में तो इंपोर्ट कर नहीं पाएगा कुछ भी, तो हमें ही करेगा वो, राइट। और हमारे तो उससे संबंध अच्छे हैं नहीं। बट सर, व्हाट आर द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर पल्सेस की कनाडा से इंपोर्ट करनी पड़ती है? वो तो मुझे नहीं पता है, देखो आई एम नॉट अ एग्री एक्सपर्ट, मे बी सम एग्री बिजनेस पर्सन कैन टेल दैट क्या है, बट एनीवे। तो ठीक है, वी गेट पल्सेस फ्रॉम आउटसाइड। तो हमें अब 6 ईयर मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया है, पूर उरद एंड मसूर, एम्फेसाइजिंग डेवलपमेंट एंड commercial ability of climate resilient protein content productivity blah blah blah. So basically the idea is that we should reduce pulses। हमारा इनफैक्ट जो कुकिंग ऑयल ये भी जो आता है, ये भी तो बाहर से काफी कुछ आता है, राइट। तो ये ऐड करता है इन्फ्लेशन को, क्योंकि डॉलर और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन करता है। तो एज फार एज पॉसिबल वी शुड बी इम्पोर्ट इंडिपेंडेंट, वी शुड बी डिपेंडेंट अपॉन आवर ओन प्रोडक्शन, राइट। दूसरी चीज इसमें इंडिया पोस्ट, राइट, ये जो हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट है, अब तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डू नॉट यूज पोस्ट एट ऑल, बट इन्होंने इसको एक पिलर बना दिया है रूरल इकोनॉमी के लिए। तो ये सब चीजें इसके थ्रू करेंगे, ये डीबीटी और इंस्टीट्यूशनल अकाउंट, क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइज, इंश्योरेंस एंड असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज। सो पोस्ट दे विल यूज, बिकॉज पोस्ट हैव गॉट अ फैंटास्टिक रीच। अगर आप देखेंगे कि इंडिया में अगर इंडिया पोस्ट की जो है, मतलब पोस्ट ऑफिस तो आपको हर गांव, छोटे से छोटे गांव में मिलेगा, राइट। सो विच इज द लास्ट माइल रीच टू देम। तो that is why it can be used for all of these services. So it will be used as a catalyst for rural economy. देखो रूरल इकोनॉमी हमारी अभी काफी आगे जाते हुए, एज वी नो दैट जो मेट्रोज है, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज, इसमें सैचुरेशन एक लेवल पे आ जाएगा या आ रहा है, यू कैन गो बियॉन्ड, बट रूरल इकोनॉमी इज गोइंग टू रियली बूम। एंड जो लोग इरमा या इस तरह से रूरल मैनेजमेंट में भी जाना चाहते हैं, XIMB में भी एक रूरल मैनेजमेंट है, और इरमा तो है ही है, इट्स अ वेल नोन, so definitely that can be looked at. ओके, सपोर्टिंग MSME, राइट। सो क्रेडिट कार्ड की बात की हमने कि 5 लाख लिमिट के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस को, जो कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड, है ना। ये माइक्रो के लिए, स्मॉल एंड मीडियम के लिए नहीं। और for 5 lakh first time entrepreneurs, including women, scheduled caste and scheduled tribes, a new scheme to be launched to provide term loans up to 2 crores during the next 5 years. तो जो फर्स्ट टाइम entrepreneurs हैं उनके लिए एक काफी अच्छी स्कीम है कि आपको इतना लोन मिल सकता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ease and cost of doing business, future ready workforce, vibrant and dynamic MSME sector, availability of technology, quality products, clean tech manufacturing। and इसमें जो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, जैसे कि फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स, इसमें 22 लाख लोग हमारे एम्प्लॉयड होते हैं, और इतने इसमें टर्नओवर जनरेट करेंगे और इतना एक्सपोर्ट। टॉय सेक्टर, वी नो दैट चाइनीज टॉयज आर किलिंग दिस टॉय इंडस्ट्री, बट वी नीड टू focus on all of these things that will create high quality, unique, innovative and sustainable toys to represent made in India brand. Food processing establishment, right? तो आपको ये 3 चीजें दिमाग में हो जाए कि देखिए ये हम 3 चीजें हैं, टॉयज और लेदर के लिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए काफी कुछ हम कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर सपोर्टिंग MSME एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। नाउ लेट्स लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ MSME, राइट। तो MSME को 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता था, एक उसका इन्वेस्टमेंट और एक उसका टर्नओवर, राइट। सो अर्लियर अगर 1 करोड़ तक का उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, राइट, सपोज आपने कोई प्लांट मशीनरी लगाया छोटा मोटा और 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया, तो पहले उसको माइक्रो बोला, अब उसको रिवाइज करके 2.5 कर दिया गया। अगर आपको सपोज इन्वेस्टमेंट भले ही आपका 1 करोड़ नहीं है, 2.5 करोड़ नहीं है या उससे ज्यादा है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़, राइट, पहले तो आपको 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो होता था, अब वो 10 करोड़ कर दिया है, तो मतलब जो 5 से 10 वाली थी वो भी अब माइक्रो में आ जाएगी। तो ऑब्वियसली माइक्रो को ज्यादा कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे अभी क्रेडिट कार्ड वगैरह की बात होगी, इंटरेस्ट वगैरह रेट भी इनसे कम लिए जाते हैं। देन स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो 10 था पहले इन्वेस्टमेंट और अब 25 कर दिया गया, टर्नओवर 50 था जो कि 100 कर दिया गया, मीडियम में 50 से 125 और 250 से 500, दैट मीन्स 500 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनी को मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा, नॉट लार्ज। पहले 250 के बाद में लार्ज हो जाती। तो अगेन दिस विल डेफिनेटली यील्ड लॉट ऑफ बेनिफिट्स बिकॉज देयर आर वेरी स्पेशलाइज्ड स्कीम्स फॉर MSMEs, राइट। इनको क्रेडिट गारंटी मिलती है, इनको
और इनको बहुत सारे दूसरी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे गेट। अभी जैसे इसके थोड़े से फैक्ट्स और फिगर देखें हम तो 1 करोड़ रजिस्टर्ड MSME हमारे यहाँ, राइट। उनके अंदर 7.4 करोड़ पीपल काम करते हैं एंड 36%, नॉट 45, सॉरी, 36% ऑफ आर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जनरेट होती है MSME। और they are responsible for 45% of our exports. So just imagine that 45% of our exports are through MSMEs, right? So which means they are really a big pillar of our economic engine, or therefore they need to be focused upon. Now इन्होंने क्या अनाउंस किया? तो इन्होंने कहा है कि देखिए इनको सब्सटैंशियल इंक्रीज किया जाएगा क्रेडिट गारंटी कवरेज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज विद गारंटी कवर राइजिंग फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। तो गारंटी क्या होता है कि देखो जैसे इन्होंने कोई लोन लिया, राइट, दे वांट टू सेट अप अ प्लांट और समथिंग एंड दे टेकन अ लोन एंड दे आर नॉट एबल टू गिव बैक अ लोन, सो देयर आर लिमिट्स व्हिच आर बीन सेट कि 50% अगर नहीं दे पाए तो 50% तक की लिमिट जो है वो गवर्नमेंट इनको, सपोज करो कोई बैंक, SBI has given a loan to this X करके MSME and this fellow is not able to pay back, right, for whatever reason, government will cover or provide a guarantee, right, कि 50% इसका या कुछ certain proportion, कुछ criteria है उनका, उतना गवर्नमेंट देगी, right, to the bank. So that means the bank will feel comfortable in lending to this MSME, right? Otherwise क्या होता है कि कोलेटरल चाहिए आपको, ये चाहिए वो चाहिए, राइट, तो वो नॉन कोलेटरल भी देते हैं फॉर MSMEs and all, they will give non collateral based loans also. सो क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है वो बढ़ा दिया गया है और 5 से 10 करोड़ कर दिया गया। ओके, सो दिस इज अ ग्रेट बेनिफिट दैट विल अक्रू टू देम। और एडिशनली इनको एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जो भी बात हुई हमारी, राइट, इसको मिलेगा। सो ये हमने अभी देखा कि इससे एडिशनल 1.5 लाख करोड़ क्रेडिट आएगा अगले 5 साल, राइट। ओके, देन फुटवेयर लेदर सेक्टर की बात हो गई, ये अभी हमने बात किया कि इससे इतना कुछ जनरेट होगा। मेड इन इंडिया टॉयज की बात हो गई हमारी, राइट। और इसके बाद में फाइन, तो दिस वाज अबाउट द MSME एंड दिस आर द फोकस। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन फॉर द MSME दिस ईयर। तो गवर्नमेंट हैज ब्रॉट आउट और क्रेडिट कवरेज जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, प्लस उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है। द क्वालिफिकेशन ऑफ क्लासिफाइंग क्राइटेरिया हैज बीन चेंज्ड and there is a lot of focus on MSME because MSME generate 36% of our manufacturing and contribute 45% to our exports, right? So ये सब 2-3 फैक्ट्स और फिगर्स अगर आप दिमाग में रखोगे तो कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो आप, राइट। सी, रिमेंबरिंग दिस कपल ऑफ पॉइंट्स और डेटा विल हेल्प यू in any situation, be it the interview or it is group discussion or it is the exam board, okay, or VAT for that matter. Okay, now innovation, so investing in people, economy and innovation. तो आंगनवाड़ी, पोषण, ये सब बेसिकली जो नर्सरी होते हैं बच्चे, कैपेसिटी इन IIT बढ़ा रहे हैं, डे केयर सेंटर, कैंसर सेंटर्स खोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, भाषा, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम खोल दी, नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग खोल दिए, अटल टिंकरिंग लैब्स खोल दिए, उन्होंने खोल देंगे, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन विद एन आउटले ऑफ 5 लाख। तो AI के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि 500 करोड़ उन्होंने इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए की। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी है सारे स्कूल्स में, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर स्कूल्स डू नॉट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे। तो उसके लिए इन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी है और मेडिकल एजुकेशन को एक्सपैंड करना है, 10,000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ 75,000 इन नेक्स्ट 5 years. So these are certain things they're doing to invest in people. That means skilling up, providing education, and even health for that matter. Okay. All right. Again, same चीज को कंटिन्यू करते हैं। सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रा। तो इंफ्रा के लिए इनको 1.5 लाख करोड़ का आउटले किया, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे लोग। जल जीवन मिशन हमें पता है कि हर घर में पाइप्ड वाटर आना चाहिए, तो इसको हम एक्सटेंड, इसका कवरेज हम 2028 तक कर रहे हैं कि 100% कवरेज मिल जाए। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, तो इसके लिए दे रहे हैं ये सपोर्ट। 0.5% एडिशनल बोरोइंग दे रहे हैं। असेट मोनेटाइजेशन,
गवर्नमेंट विल मोनेटाइज इट्स एसेट्स, राइट? गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो उसको मोनेटाइज करके वो पैसा लगाएगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट? सो गवर्नमेंट विल मोनेटाइज द एसेट्स एंड देन यूज दैट मनी टू अगेन स्पेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. अर्बन चैलेंज फंड, राइट? तो 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड हो गया. मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, राइट? तो ये मैंने खुद बताया था कि प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टिसिपेशन करने के लिए ये सब लाइबिलिटी और एनर्जी एक्ट ये सब थोड़ा अमेंडमेंट कर देंगे. उड़ान, राइट? सो वी नो दैट देश में भी 88 we have 88 airports. Okay, number of airports has increased to 88, and I think the number of destinations are some 600 odd destinations which are connected. Now 20 new centers को destinations को connectivity मिलेगी, and 4 crore passengers. So just imagine the kind of air traffic that we have. I'm sure all of you, when you travel, you would see like कितना ज्यादा ट्रैफिक है. कोई भी फ्लाइट हमारी कहीं के लिए भी कोई खाली नहीं जाती है. फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, से बिहार के लिए अगेन फिर आ गया काफी सारी चीजें. एंड स्वामी है फंड, राइट, फॉर हाउसिंग. सो ये सब चीजें कर रहे हैं. नाउ आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा I mean, you can just kind of remember 1 or 2 points here. You don't need to really kind of memorize all these points. Okay. इसके बाद में tourism, right? Tourism for employment led growth. So we already know that. देखो हमारे यहाँ पे टूरिज्म की हालत थोड़ी खराब है. The number of tourists have fallen. अगर हम 2019 के बाद में जो फिगर्स था 2019 का हमारा whatever number of tourists, उसके बाद में 2020 में कोविड में तो बैठ ही गया था, राइट? 21 में भी थोड़ा नीचे था, लेकिन जो 22 ऑनवर्ड्स जो टूरिज्म स्टार्ट हुआ दुनिया में, एंड वो हमारे यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं आया. इनफैक्ट the numbers are much below what came in 2019. So tourism, I'm sure you would have read many reports, even places like Goa and all, जहाँ पे हाल खराब हो रहा है, राइट? तो वहाँ पे भी सिचुएशन खराब है, और टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं. तो ये लोग टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ करने वाले हैं. टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप्ड, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, ई वीजा फैसिलिटी देना चाह रहे हैं ताकि streamline operations. Mudra loan for home stays. So home stays, we know now there's a big segment, right? Whenever we travel, we are not looking at typically staying in hotels, right? We go to Airbnbs or we go for home stays, right? So there are many such home stays in all kind of destinations, and people work from home की जगह पे people start working from hills. जो नॉर्थ में है हमारे दिल्ली में, वो लोग गर्मी में दे प्रेफर टू वर्क फ्रॉम हिल्स, जिनका रिमोट वर्किंग है. तो वो 1-2 महीने के लिए हमें पता है कि वो किसी ना किसी पहाड़ पे जाके दे स्टे देयर एंड वर्क, राइट? सो दैट्स काइंड ऑफ कैचिंग अप. एंड मुद्रा लोन जो है, मुद्रा इज बेसिकली द माइक्रो फाइनेंस. तो माइक्रो फाइनेंस जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें आपको होम स्टे, अगर आपको अपने घर के साथ साथ कोई होम स्टे बनाना है तो उसके लिए लोन मिल जाएंगे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बूस्ट द टूरिज्म. Ease of travel and connectivity to tourist destinations, intensive skill development programs for that. So tourism led growth करने का इनका पूरा प्लान. PM research fellowship, 10,000 fellowships for technological research, R&D innovation. देखो R&D में इंडिया बहुत पीछे है, right? We know that we hardly spend money compared to the developed countries and compared to even China for that matter. हमारी जीडीपी का बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज R&D में जाता है. 0.6%. कितना? 0.6. 0.6. ओके. यस. इनफैक्ट हमारी कंपनीज भी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हैं. तो दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. जब तक हम रिसर्च डेवलपमेंट में नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, तब तक कहाँ से हम कुछ इनोवेशन करेंगे? तो ये लोग 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन, क्योंकि सरकार तो करती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से करवाएंगे. नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, राइट? तो जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा, ताकि स्ट्रीमलाइन हो सके. प्रोजेक्ट गति शक्ति है एक इंफ्रास्ट्रक्चर. गति शक्ति जो है लॉजिस्टिक्स का प्रोजेक्ट है सरकार का, जिसमें वो सारे कॉरिडोर्स, रेल कॉरिडोर और एक्सप्रेसवेज और वाटरवेज बना के दे आर गोइंग टू बेसिकली हैव अ कनेक्टिविटी. तो और ये सब चीजें कर रहे हैं. देन ज्ञान भारतम मिशन. सो हमारे जो
मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसको डिजिटाइज कर देंगे, राइट? जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं इसको डिजिटाइज करेंगे। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लागा। सो दीज आर सम फूड, फ्यूचर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए जीन बैंक बनाएंगे, ताकि कल को कोई अगर जैसे कैलामिटी आ जाती है और कोई पर्टिकुलर क्रॉप जो है खत्म हो जाती है, तो वो आगे भी हमें मिले, तो उसके लिए जीन बैंक बनाएंगे जिसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स में। सो दीज आर अगेन सम थिंग्स विच दे promoting exports. So easy access to export credit, cross-border factoring support to MSMEs to tackle non-tariff measures in the overseas market. अब export promotion में fortunately we are still not under the kind of radar of Trump हैं हम लोग, लेकिन ट्रम्प ने हमें भी छोड़ दिया है, राइट? ट्रम्प ने अभी कनाडा और मेक्सिको और चाइना के ऊपर हमला किया है, राइट? So just because we are talking about tariffs, we can quickly look at that. Why did he do it? Anyone? Why did he impose 25% on Canada and Mexico? सर बिकॉज ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई था इसलिए। That is not the primary reason, ostensibly. सर What is दे the- आर बॉर्डर शेयरिंग नेशंस आल्सो, एंड उसने थोड़ा अलेज किया था कि कनाडा ड्रग्स वर्क्स भी सप्लाई कर रहा है यूएस को थ्रू दोस। Yes. See, Trump has got issues with Mexico and Canada in terms of two things. One is the illegal immigrants, right? So more from Mexico, because Mexico का हमें पता है कि मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, तो उसको वो सील करने के, इनफैक्ट लास्ट टाइम व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ वॉल, राइट? वॉल बनाने की कोशिश कर रहा, उसको फंडिंग नहीं मिल रही थी कांग्रेस से, तो वॉल तो बनी नहीं। तो अभी उसने जाके वहाँ पे अपनी फौज खड़ी कर दी है, काफी वापस जो भी है वहाँ पे उनको वापस भेजने के लिए। तो एक तो बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स, तो इमिग्रेंट्स हो गया। दूसरा उसका जो सबसे बड़ा है इशू वो ड्रग्स। तो एक फैंटनिल करके ड्रग होती है। तो फैंटनिल जो होती है ये बेसिकली उसको मेक्सिको और कनाडा से आती है, ऐसा उसका कहना है। तो बिकॉज ही थिंक्स दैट द गवर्नमेंट्स देयर सपोर्ट दोज ड्रग लॉर्ड्स एंड ऑल दोज माफियोसो जो हमारे हैं पैब्लो टाइप के। तो पैब्लो एस्कोबार, उस तरह के लोगों को प्रमोट करती है गवर्नमेंट मेक्सिको की, और उसको रोकने के लिए ताकि गवर्नमेंट जो है टेक्स स्टेप्स टू स्टॉप द कमिंग ऑफ ड्रग्स इनटू द यूएस, राइट? सो इसके लिए उन्होंने 25% दोनों के ऊपर ठोक दिया है। ओके, नाउ एंड देन 10% छोड़ दिया चाइना के ऊपर। सो obviously now what has happened is the world markets have got shaken very badly. So you would have seen on Friday the American markets fell down drastically, and today also they are deep in the red. In fact सुबह से खराब थी हालत। तो obviously because इसका immediate impact होगा कि जैसे मैं देख रहा था कि जो कार्स हैं वहाँ पे, राइट, $3,000 महंगी हो जाएंगी जो कि चाइना से आ रही हैं, एंड कनाडा से और मेक्सिको से भी काफ़ी सारी चीज़ें इनकी आती हैं। So a lot of those will be immediately they'll become much more expensive, and inflation will again start rising, and people will again start crying. So ठीक है, that's the problem. So let's see what it does to tackle that. But China has gone to WTO. China कहता है कि हम WTO जाएंगे और वहाँ पे हम केस कर देंगे इनके अगेंस्ट कि ये कैसे रेस कर सकते हैं। तो अभी ठीक है, बैकडोर डिस्कशंस हो रहे होंगे इनके। So anyway, so what I'm coming to is that export तो हम जो करते हैं US is one of the few countries with whom we have trade surplus. That means we export more than we import. हमने इसमें इनफैक्ट अभी आगे भी आएगा कि उनसे डर के, मतलब क्योंकि ट्रम्प जो है बार बार कहता रहता है कि मैं इंडिया के ऊपर भी लगा दूंगा, और पर्टिकुलरली उसको हार्ले डेविडसन बाइक से बहुत ऑब्सेशन है। हमारे यहाँ पे जो हार्ले डेविडसन यूएस की बाइक्स आती थी उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा 150% ड्यूटी लगाए थे, तो उसका वो हर समय रोना रोता था। तो हमने उसको ऑलरेडी कम कर दिया है। इनफैक्ट इन दिस बजट वी हैव रिड्यूस्ड द टैरिफ ऑन क्वाइट अ फ्यू यूएस इंपोर्टेड आइटम्स। यस प्रियांश। Sir, I work in Hero MotoCorp, and I am working on the project where we are collaborating with Harley Davidson. So Hero MotoCorp will be acting as contract manufacturers for Harley Davidson. Okay. All these Harley Davidsons will be built in India. We are going to build their old models which will be then exported. In UK, Royal Enfield is eating up Harley Davidson share.
So Harley Davidson wants cheap bikes made over in India and then exported to the world. So they are addressing this issue in that way. Okay, great. So that's a fantastic input that our Royal Enfield Bullet is eating away their share in UK and some other markets. And therefore, Harley Davidson wants a cheaper product, which they will want to manufacture in India, and for which they have tied up with Hero Motors. So that's good. It's great. Yes, so see, all of these things will happen, and it's good that हमारे यहाँ पे manufacturing बढ़ेगी, make in India बढ़ेगा, and all these things will happen. Okay, so हमें एक्सपोर्ट को अपने प्रमोट करना है. अगेन ट्रम्प का दूसरा था जो हमारे ब्रिक्स करेंसी को लेके कि आप लोग अगर ब्रिक्स करेंसी लेके आओगे तो मैं 100% टैरिफ ठोक दूंगा. तो अगेन ब्रिक्स करेंसी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट तो अभी नहीं करती है, और प्लस जो भी अगर हम सोच भी रहे होंगे तो अभी तो फिलहाल सारे के सारे प्लान्स शेल्फ करने पड़ेंगे. तो ब्रिक्स करेंसी वैसे हो भी नहीं सकती बिकॉज वी कैन रियली कोलैबोरेट विद चाइना. चाइना इज नॉट सम कंट्री विच यू कैन ट्रस्ट. तो इसलिए वो ब्रिक्स करेंसी वाली बात सिर्फ हवा में ही है. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स नीडेड टू डन. देन भारत ट्रेड नेट करके उन्होंने स्टार्ट किया है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, राइट. The national framework for GCC. GCCs are basically global capability centers, right? ये हमारे यहाँ पे इंडिया में एक बहुत बड़ा employment generating sector बन चुका है. I don't know if any of you are aware of this. I'm sure some of you even work in some GCC. कोई है क्या जो किसी GCC में काम करते हैं? Nandini is one, of course. Is she there? No. So she works in the GCC of Caterpillar India. So GCC मतलब basically क्या है? जैसे Ford है कंपनी, right? तो फोर्ड ने अपना यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल दिया है. सो दैट मीन्स उसका जो भी डेवलपमेंट है, जो भी एप्लीकेशन उसकी डेवलप हो रही हैं, जो भी उसके ये हैं पीछे सेंटर जो है वो हमारा बैक एंड सेंटर इंडिया में है. बिकॉज इंडिया हैज गॉट अ गुड टैलेंट पूल ऑफ दीज आईटी इंजीनियर्स. तो जैसे पहले आईटी इंजीनियर्स हमारे जो होते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, वो मोस्टली एम्प्लॉयड होते थे सिर्फ TCS, इन्फोसिस और एक्सेंचर और कैपजेमिनी टाइप की कंपनी में, विप्रो में. लेकिन अब इनको लिए ऑल्टरनेट मिल गया है विच इज द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. So many global companies are setting up GCCs here. तो GCC को प्रमोट करने के लिए emerging 2-tier cities में, तो अभी ऑब्वियसली अब ये लोग अगर बड़ी सिटीज में ही हैं, चेन्नई में है, बैंगलोर में है, तो उसके बजाय इन emerging 2-tier cities में इनको लाया जाएगा. So that's a great kind of employment generator, but obviously for skilled people who are trained in this. Warehousing facility for air cargo, right? So air cargo के लिए ये सब करना है. ओके, रिफॉर्म्स एज द फ्यूएल. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म तो हमने देखा था, फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसको रिफॉर्म करने बहुत जरूरी है. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, राइट, सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ पीपल इन रूरल एरिया. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं और पीपल इन रूरल एरिया, इनको हेल्प करेगा. नेशनल बैंकिंग फाइनेंस एंड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक एजेंसी है, तो ये पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट करेगी. सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, ये केवाईसी बहुत दुखी कर रखा है लोगों को, बार बार केवाईसी करना पड़ता है. तो इसको एक बार वंस एंड फॉर ऑल होना पड़ेगा. कैन यू प्लीज नेम सम emerging 2-tier cities, tier 2 cities in India? Okay, so चलो आप ही बताओ. Let's get a view from people on emerging tier 2 cities. सर पुणे. नहीं, पुणे सर तो एमर्ज हो चुकी है. पुणे को अब क्यों एमर्ज करवा रहे हो आप? पुणे तो ऑलरेडी. सर विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम, करेक्ट. सर इंदौर, अहमदाबाद. इंदौर, राइट. अहमदाबाद को नहीं बोल सकते यार, अहमदाबाद तो tier 1 हो चुका है ऑलमोस्ट. अहमदाबाद, हैदराबाद, ओके, देन पुणे, उन्हें सब ऊपर हो चुके हैं. देन नासिक करके एक सिटी है महाराष्ट्र में. सूरत है गुजरात में, राइट. मदुरई में भी, आई डोंट नो, साउथ के लोग बोल सकते हैं कोयम्बटूर. देन मे बी अगर हम चले जाएं भुवनेश्वर, राइट, इन ईस्ट साइड. अमरावती, राइट. अमरावती एक बहुत, जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनेगा, तो इसके ऊपर काफी लोग बेट लगा रहे हैं कि दिस विल बी द नेक्स्ट बैंगलोर और दिस विल बी द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. बिकॉज a lot of people are not people but companies might think of moving from Bangalore, because Bangalore में हमें पता है कि बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कन्नड़ा को लेके और इन सब को लेके, और Bangalore is totally riddled with problems of traffic and other issues. So people are moving to Amaravati. In fact, Chandrababu Naidu और जो उनका बेटा है वो IT मिनिस्टर है, तो वो मिलके काफी कुछ they are trying to bring a lot of investment to Amaravati. So it remains to be seen whether this emerges as a really big threat to maybe Hyderabad or
बैंगलोर, अभी देखने वाली बात है। Okay, so Sir, is the government providing any incentive to the companies for opening GCCs in tier 2 cities? I'm sure, बिल्कुल ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, guidance to states for promoting GCCs in emerging tier 2 cities. Definitely they'll be giving some support. बिल्कुल. Do we include Gift City? हाँ जी, Gift City. which city? Gift City. गिफ्ट सिटी, हाँ हाँ, गिफ्ट सिटी। देखो ये गिफ्ट सिटी तो एक अलग ही लेवल पे है। गिफ्ट सिटी गुजरात में है, राइट? तो वहाँ पे तो इनफैक्ट दैट्स बीइंग काइंड ऑफ पोजीशनड एज अ फाइनेंशियल हब। जैसे सिंगापुर और दुबई और ये सब है, तो वैसे ही गिफ्ट सिटी अहमदाबाद की जो है उसको ऐसे ही मॉडल किया जा रहा है। अभी इट रिमेन्स टू बी सीन। वहाँ पे इनफैक्ट अगर जो लोग गुजरात के हों या उस साइड से अवेयर हों, तो गुजरात में प्रोहिबिशन है, बट इनफैक्ट गिफ्ट सिटी इज द ओनली प्लेस वेयर दे वुड बी अलाउइंग अल्कोहल एंड ऑल ऑल्सो। तो ये कई लोगों को अट्रैक्ट करेगा वहाँ, बिकॉज गुजरात है लॉस्ट आउट ऑन IT काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल prohibition and this kind of policies. Yes, Shubhanshu. So yes, I was saying this only, मतलब मैं रहा गिफ्ट सिटी में for 6 months on my internship, but वहाँ पे इतना डेवलपमेंट तो नहीं है अभी। I don't know फ्यूचर में हो तो। आप कब की बात कर रहे हो ये? सर अभी 23 ओनली। 23, ओके। या तो नहीं, काफी कुछ इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स करे हैं वो अभी 24 में भी करे हैं। तो सी दिस इज अगेन माय व्यू आल्सो, ओके, बिकॉज मैं भी इस प्रोजेक्ट को और काफी टाइम से देख रहा हूँ, 8-10 अगर 12 सालों से, कि जिस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा था, उतना कुछ ये खास हुआ नहीं है। तो आपका भी यही व्यू है, राइट? फिलहाल राइट सर, वहाँ पे 4-5 बिल्डिंग ही है और उसमें ही है ऑफिसेज, बाकी तो खेती है, मतलब कुछ है ही नहीं डेवलप। हाँ, तो अभी मे भी ठीक है, मे भी अपकमिंग है। अभी कई लोग वहाँ पे खोल रहे हैं, जैसे एक IFT भी खुल रहा है वहाँ पे, ऐसा मैंने सुना था। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, कई सारे जो जैसे ये फॉरेन यूनिवर्सिटी जो हैं वो आके गिफ्ट सिटी में अपना कैंपसेस खोल रही हैं। तो ऑब्वियसली दे आर बीइंग वूड, उनको वहाँ पे लाने के लिए काफी सपोर्ट किया जा रहा है। लवासा जैसा हाल ना हो जाए। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। दे वांटेड टू हैव अ स्पेशल सेंसेक्स इन गुजरात। यस। तो जैसे अगर किसी को पता हो, हमारा पहले जैसे SGX निफ्टी होता था, जैसे अब गिफ्ट निफ्टी है, तो हमारा यहीं पे वो गिफ्ट निफ्टी यहीं से चलता है। ओके, सो रैशनलाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल एंड FDI लिमिट्स। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि FDI लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में वो 100% हो गई है। तो now they don't need to partner with any Indian company. The foreign insurance companies can come and straight away start their operations here. Okay. Then we have these tax reforms. So new income tax bill होगा, ये अभी बात हो रही है कि ये आएगा एक वीक में। So that will simplify a lot of procedures that are there as a part of the income tax. Regulatory reforms, right? Regulatory reforms होंगे। Light touch regulatory framework means कि गवर्नमेंट जो है वो दूर से देखेगी, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। Principles and trust to unleash productivity and employment. High level committee for रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, FSDC। तो इस तरह से अलग अलग चीजें चलेंगी। जन विश्वास बिल आएगा, राइट, टू डीक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजन। अभी क्या होता है, देखो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन होते हैं लॉज में जिसमें आपको क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाती है, विच आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जैसे किसी वो सिविल टाइप के कुछ हैं, बट उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाती है, तो आपको अननेसेसरी जेल वेल की बात होती है। तो दोज आर नॉट समथिंग विच इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग पीपल, एंड देयरफॉर दिस जन विश्वास बिल विल कम विच विल डीक्रिमिनलाइज कि ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आप पेनल्टी भर दो, फाइन वाइन भर दो और निकल जाओ। तो जेल वाला जो है वो प्रोस्पेक्ट उसमें खत्म हो जाएगा। सो दैट्स अ गुड रिफॉर्म दैट दे आर। देन इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, राइट। सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करेंगे अभी। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आएगा। इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में GST, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट, ये आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। तो रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम्स टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। कस्टम्स टैरिफ, जैसे अभी बात होती है GST की भी, राइट। GST में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। पीछे लॉट ऑफ मीम्स एंड लॉट ऑफ कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आया था कि ये नमकीन है कि मीठा है, कि इसके ऊपर 18% होना चाहिए, उसके ऊपर 12% होना चाहिए। सो बेसिकली लॉट ऑफ सच
complications in the tariff structure lead to tax terrorism, tax harassment, because it leaves many things to open interpretation of जो tax officials होते हैं वो आके तंग करते लोगों को. तो that really is not something which promotes ease of doing business, right? So therefore they want to rationalize the customs tariff structure. They should do same thing for GST also, but GST बजट में नहीं आता, वो GST काउंसिल है तो उसके अलग से मीटिंग्स होती हैं. मे बी दे विल लुक एट इट देयर. सो रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स हटा दिए गए हैं. अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज. अभी ये सरचार्ज और सेस यूज करते हैं, उसमें भी एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, दिस दैट बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं एक ही लगाइए. अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स. देन सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स. मेक इन इंडिया. तो ओपन सेल फॉर एलईडी एलसीडी भी ये क्या है कि जब इंपोर्ट होता है राइट, तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो ताकि सस्ते में आए और फिर यहाँ पे टीवी ज्यादा बने. अभी हमारे यहाँ पे टीवी वगैरह जो मोस्टली आते हैं बाहर से राइट. लूम्स फॉर टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ईवीज. प्रमोशन ऑफ एमआरओ राइट. मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस जो होता है एमआरओ, तो इसके ऊपर 10 years के लिए एग्जाम्पशन ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग. एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ट्रेड फैसिलिटेशन राइट. तो ऑल दीज आर अगेन सम indirect tax proposals. Then medicines के लिए इसमें 36 life saving drugs medicines in exempted list, 6 medicines in 5% duty list, 37 medicines and 13 new patient lists. तो ये जो medicines हैं obviously they are very expensive medicines, rare disease, cancer, severe chronic disease वगैरह में आती है, तो इसको आपको कम करना है प्राइस. Now we come to the personal income tax. Okay, so I'll just take 1 minute break. You can also take a breather. अब देखो अभी अगर हमने जो पोर्शन कवर किया था, that was, as I said, that was more to do with those schemes, the names of those schemes and a little bit of outlay क्या है क्या नहीं. But now we will focus more on hard numbers. Okay, तो अभी पहले तो हम income tax reforms की बात करेंगे and then we will move over the hard numbers. So we are moving into stage 2 of the discussion and we will take a 1 minute break. So please take a minute break and then we will start again. Okay. So let's begin by looking at the change in income tax rates. So as we know, the slabs have been changed and these are the revised slabs, right? Now, potentially, if you see till 12 lakhs, nobody needs to pay anything. And for salaried people, that is 12.75 lakhs. So what is this 75,000? The standard deduction. Okay. Is it applicable to other category of people other than salaried? No, sir. No. And why not? So what is this special provision of 75,000 as a standard deduction, जो कि salaried लोगों को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता. Which means बाकी जो लोग हैं उनको 12 लाख से नीचे ही सैलरी पे टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन सैलरी लोगों को 12.75 तक की भी सैलरी आपकी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो व्हाट इज दिस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन? एनीवन? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू, आई मीन ऑल ऑफ यू आर अवेलिंग ऑफ दिस, बट यू नॉट अवेयर. देखो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सेज दैट a salaried person in order to generate income, right, working in a company needs to incur certain expenses which are like your house rent or maybe transportation or some other things which maybe not be applicable to a person who owns the business or self-employed. So they maybe get to live in their own place and maybe not commute and all. So इसके लिए उनको नहीं दिया जाता, ये सैलरीड लोगों को दिया जाता है. तो सैलरीड आदमी की अगर इनकम सपोज करो कि 15 लाख है, तो आपका जो टैक्सेबल है वो 14.25. ओके, 75,000 रुपीज का आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा. फिर 14.25 पे आपका जितना है वो कैलकुलेट होगा. तो अब अगर एक सैंपल कैलकुलेशन लेते हैं हम यहाँ पे कि 12 लाख वालों को तो कुछ भी नहीं इसमें टैक्स देना, लेकिन सपोज करो किसी की इनकम 14,75,000 है, राइट, 14.75 लाख, तो उसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो उसको बेसिकली 14 लाख उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई, तो जिसके ऊपर उसको ये वाले स्लैब के अंदर 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, राइट, 5% ऑफ 4 लाख. यहाँ पे उसको 40,000 देने पड़ेंगे, राइट, विच इज 10% ऑफ 4 लाख. और यहाँ पे उसको 2 लाख तक का देना पड़ेगा, तो 2 लाख का 15%, राइट, विच इज 30,000. तो दिस फेलो विल हैव टू शेल आउट 90,000 रुपीज एज अ टैक्स.
हाँ, मार्जिनल रिलीफ में अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अभी एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ, आई विल कम टू दैट। समबडी हैड रेज्ड द हैंड। यस अरमान। यस सर, इस पे मतलब आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं तो ओल्ड टैक्स में करता था ITAR फाइल, न्यू टैक्स में फिर इसमें एजुकेशन एंड हेल्थ सेस भी लगेगा ना? हाँ, वो सेस की बात अलग है, मैं सेस पे आ नहीं रहा हूँ। यस, सेस तो बिल्कुल लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक इनकम टैक्स, है ना, यू आर मेक सेंस। राइट। सेस पे अलग लगेगा, लेकिन ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। दूसरा, इसमें आपकी जो दूसरी इनकम है जो कि कैपिटल गेन्स से आ रही है, वो इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि वो कैपिटल गेन्स के स्लैब अलग होते हैं, राइट। तो दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। दिस इज बेसिकली योर इनकम फ्रॉम योर सैलरी और योर बिजनेस, राइट। हाँ, ये बात अलग है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, राइट, जो डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो डे ट्रेडिंग करने वालों को या फिर अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खेलते हैं, तो जो आपकी इनकम होती है उसमें, उसको आपकी बिजनेस इनकम माना जाता है। उसके लिए अलग से स्लैब नहीं चलता, राइट। जैसे कि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तो 12.5% है, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% है। तो आपके अगर शेयर्स में आप डील कर रहे हो और शॉर्ट टर्म में आपने बेचे हैं तो 20% लगेगा, एक साल के बाद बेचे हैं तो 12.5% लगेगा। लेकिन अगर आपने डे ट्रेडिंग करी है, सुबह खरीद के शाम को बेच दिया है, तो आपको शॉर्ट टर्म नहीं लगेगा, ओके, आपको उसमें लगेगा एज अ बिजनेस इनकम। तो आपकी जो नॉर्मल इनकम जो 12 लाख है जो भी आ रही है यहाँ पे, वो उसमें से देना पड़ेगा। और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी खेल रहे हो तो भी आपको वहीं पे जाएगा। इस आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जो लोग इक्विटी में करते हैं ट्रेड या फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द चेंज नाउ दिस हाँ फॉर दी। हाँ, बोलो। हाँ, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडिंग इंट्राडे कर रहे हैं, तो जैसे ईयर एंड 20 लाख रुपए कमा लिया, कोई टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग नॉर्मल उन पे टैक्स लगेगा 5, 10, 15 वाला, यस, राइट? यस, यस, यस। अगर मतलब आपकी वो ट्रेडिंग इंट्राडे वाली है तो, है ना। अगर स्विंग ट्रेडिंग है, एक महीने रखा, तो फिर शॉर्ट टर्म लगेगा। लेकिन अगर सेम डे आपने किया, तो आपका नॉर्मल इनकम में काउंट हो जाता है। 1 महीने से ऊपर स्वीप आपने बोला, स्वीप ट्रेडिंग? नहीं नहीं, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं ना। एक अगर एक तो होती है स्विंग ट्रेडिंग, ओके। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो कि थोड़ा कम हुआ तो ले लिया, फिर थोड़े दिन रखा, फिर बेच दिया। एक होती है इंट्रा डे। तो इंट्रा डे वाली जो है, जो सेम डे खरीद के बेच दिया आपने, वो वाली आपकी बिजनेस इनकम, नॉर्मल इनकम में आती है। ये वाली तो आपकी शॉर्ट टर्म में आ जाएगी ना, फिर शॉर्ट टर्म गेन्स में आएगी। तो ये तो 20% पे होगी फिर, अगर एक महीने रख के बेच दिया मैंने शेयर, ओके। गॉट इट सर। सर लॉन्ग टर्म का पीरियड क्या है? एक 11 साल महीने? लॉन्ग टर्म इज एक साल। ये सरमान। सर जैसे स्मॉल डाउट, ये जो आपने कहा कि ये बिजनेस इनकम में काउंट होगा, तो दिस विल बी द नेट इनकम, नो? और नेट इनकम। मतलब प्रॉफिट माइनस लॉस। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगर आप जस्ट अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करते हो, तो आपका जो एनुअल टर्नओवर है ना, वो तो क्रोर्स क्रोर्स में चला जाता है, राइट। ओके। तो वो अगर लगा दिया तो लूट जाएंगे सारे के सारे। ओके, ऑल राइट। ओके, सो दिस वाज द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्लैब्स। तो ये था, ये हमें पता है सब। मैं अभी देखो, अभी हम ना न्यू रिजीम की बात ही करेंगे। अभी कोई फायदा नहीं पुरानी रिजीम। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी पुरानी रिजीम को डिसवेड करने में ही लगी हुई है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, सो वी मूव टू द न्यू रिजीम। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन की मैंने बात बता दी आपको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इनकम नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस योर टैक्स बिल, ओके। हाउ, ये तो हमें पता है इनकम टैक्स। ओके, अब कुछ कुछ लोगों को, अभी आई डोंट नो, ऑफ कोर्स आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, लेकिन कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन भी होता है कि यार ये आप एक तरफ कह रहे हो कि 12 लाख तक के जो है वो टैक्स नहीं देना, राइट। और फिर उसके बाद में आपने 0 to 4, 4 to 8 और 8 to 12 और 12 to 16 ये बना दिया, तो ये क्या मतलब? ये क्यों है, राइट। तो ये बेसिकली इसलिए है कि जो 12 लाख के ऊपर जिनकी इनकम है, तो उनको फिर ऐसा नहीं है कि 12 लाख से स्टार्ट होता है। ओके, देयर आर सम पीपल हु आर परपेचुअली कंफ्यूज कि यार 12 लाख, किसी की इनकम 14 लाख से है तो मतलब उसका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, आपका स्टार्ट यहाँ से होगा, दीज आर द स्लैब्स, एंड देन यू विल मूव ऑन, ओके। तो वन डज नॉट पे टैक्स ऑन एंटायर इनकम एट अ फ्लैट रेट, ओके, यू पे स्लैब वाइज। सर किसी को दुश्मनी निकालनी है तो मतलब 1,000 2,000 रुपये इंक्रीज कर दे सैलरी में। अभी इस बात के ऊपर आते हैं हम, इसी का नाम है मार्जिनल रिलीफ, ओके। ये एक बहुत एक अगेन एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि सपोज करो किसी को 11.9 लाख मिलता है, राइट। तो उसको तो जीरो टैक्स देना है। और किसी को 12.1 मिल गया, आप सपोज, तो 12.1 का टैक्स निकालो,
12.1 का टैक्स निकालो अगर करंट स्लैब के नए स्लैब के हिसाब से, तो यहाँ पे 20,000 देना है उसको, यहाँ पे 40,000 देना है, और उसके बाद 10,000 के ऊपर उसको 3% देना है, राइट। तो 3% देना है मतलब 3,000 रुपये देना है। तो उसका तो 63,000 हो गया उसका। तो आपने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 वाली बात हो गई कि आपकी सैलरी तो बढ़ी यहाँ पे 20,000 रुपये, लेकिन आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई 63,000 रुपये। तो ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, इसी को मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको आगे कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, सो ओके, ये तो हो गया। तो ये हो गया, ये हमें पता है कि स्लैब वाला हमने कर लिया। व्हाट इज रिबेट? अब रिबेट क्या होता है? जैसे किसी को 12 लाख एनुअली किसी को मिलता है ना, तो उसको जीरो टैक्स देना है। तो जीरो टैक्स क्यों देना है? क्योंकि 4 से 8 वाले में जो उसको 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ता, और 8 से 12 में जो उसे 40,000 देना पड़ता, वो उसको रिबेट मिल जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रिबेट। सो दैट मीन्स कि 12 लाख वाले तक को कुछ भी नहीं देना, राइट। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ फुल रिबेट ऑफ 60,000, making a total income of 12 lakh tax free in the hands of taxpayer. Okay, so this is what is rebate. तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये रिबेट क्या है। ये सुशांत, पर अगर 60,000 वापस ही कर देना है तो फिर लगाए कि मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नहीं, रीबेट? नो नो नो, दैट इज बिकॉज आपने जो स्लैब बनाए ना, सी सपोज करो मेरी 12 लाख सैलरी है, अब स्लैब बने हुए हैं 0 to 4 पे नील, 4 to 8 पे 10, सॉरी 5, 8 to 12 पे 10, तो ये स्लैब बने हुए हैं। तो अब इस हिसाब से 12 लाख के ऊपर टैक्स बनता है 60,000 रुपये। तो उस 60,000 रुपये नहीं लेना ना सरकार को। सरकार ने तभी तो डिक्लेयर किया है कि 12 लाख तक की सैलरी टैक्स फ्री है, क्योंकि वो 60,000 जो बनता है लाइबिलिटी, जो कि 13 लाख वाले पे तो नहीं होगा ना सर। 13 लाख वाले पे तो 20 और 40 60 भी लग गया, और उसके बाद 1 लाख के ऊपर उसको यहाँ पे 15% लगेगा, मतलब 15,000 रुपये और लग गया उसको। तो ठीक है, मतलब मैंने कभी टैक्स दिया नहीं तो मैं ये मतलब आई हैव नो आइडिया। तो इसमें ऐसा रहता है कि जैसे 12 लाख आपने सैलरी बताई तो 60,000 टैक्स बना, तो पहले वो 60,000 मतलब मैं नहीं 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 बताऊंगा तो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देना आपको, वो नहीं देना आपको। ओके। यू डोंट हैव टू पे एंड देन गेट इट बैक, वो सब नहीं है। रिबेट आपका इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर ही लग के जाएगा। देखो, जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना, तो उस रिटर्न में आप ये इंक्लूड रिबेट लिख दोगे वहां पे कि इतना टैक्स बनता है 60,000, उसमें से रिबेट 60,000, तो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी 0। ओके, तो आपको दे के वापस नहीं लेना है, ठीक है। ओके, गॉट इट। ऑलराइट। सो टोटल सेविंग्स फॉर अ पर्सन अर्निंग 12 lakhs, तो टोटल बेनिफिट जो है उसका 80,000 रुपीज बचेगा, राइट। जो मतलब पहले के हिसाब से, तो अगर आप पहले के हिसाब से देखेंगे कि जो 12 लाख रुपए कमा रहा था आदमी, उसको 3 से 7 लाख के ऊपर 5% देना था, मतलब 20,000 रुपये यहाँ पे देना था उसको। 7 से 10 लाख पे 10%, मतलब 30,000 रुपये उसको यहाँ देने थे। 10 से 12 लाख में 15%, मतलब कि उसको 30,000 रुपये यहाँ पे देने थे। तो मतलब 80,000 रुपये उसको देने थे, राइट, जो 12 लाख कमा रहा था। तो वो 12 लाख कमाने वाले को अभी 80,000 रुपये का फायदा होगा। दिस ही विल नॉट हैव टू pay in the new regime. Okay, so that's why he is happy. Okay, so ये एक जस्ट एक दिया हुआ है, इन्होंने टेबल बनाया हुआ है, ये आप देख लेना। बाकी कोई मतलब सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सर कितना बेनिफिट हो रहा है। हाँ बोलो। सर इसमें अभी जो आपने एग्जिस्टिंग वाला दिखाया उसमें 7 lakhs था, और एक पहले जो दिखाया था आई थिंक उसमें 6 था। इसमें से 6 वाला है अभी नहीं एग्जिस्टिंग नहीं, या? 6 कुछ नहीं है, 7 हो गया था ना ये लास्ट ईयर। दिस वाज अच्छा, नहीं, वो जो 7. 3 to 6, 6 to 9 था वो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं है, अच्छा, ओके। वो नहीं है। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट ये शशांक। सर इसमें 75,000 वाला कौन सा पार्ट है? 75,000? हाँ सर, 12.75 आपने कहा था नहीं, ना। ये हम नेट मान के चल रहे हैं। देखो, ये जो 7.5 है ना, हम मान के चल रहे हैं कि 12 लाख किसी की टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। तो अगर वो सैलरीड है तो 12.75 पे भी वहीं पे खड़ा हुआ है, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है वो 12 पे खड़ा हुआ है। तो ये ऑलरेडी इसमें आ गया, मतलब 75 पे उसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स हियर। वन इज नॉन टैक्सेबल इनकम, sorry, taxable income, and second thing is the rebate comes into play after you have calculated the tax. Taxable income comes into play as a top line. तो अगर किसी की 12.75 टोटल इनकम है, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल इनकम, बिकॉज 75,000 रुपीज उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो उसके बाद में उसकी 12 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम आ गई। और जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, उसकी
टैक्सेबल इनकम भी 12 है और उसकी टोटल इनकम भी 12 है, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। ओके, सो आई होप दिस एक्सप्लेन्स। जैसे यस सर। सपोज करो somebody is earning 15.75 lakhs, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 15 lakhs मानी जाएगी। तो उसको फिर 15 के ऊपर कैलकुलेशन चलेगा उसका, ये स्लैब वाइज वैसे। ओके, यस सर। सर ये बिजनेस ओनर्स को भी कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना? नहीं नहीं मिलती। नहीं बट सर वो हम्म, पीएनएल में तो दिखा देते हैं ना। किसके? सर अपने पीएनएल में एनुअली जब टैक्स भरना होता है तो उसमें अ, वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो नहीं, अ, आप बिजनेस की बात करें, कॉर्पोरेट जो टैक्स देता है, हाँ इंडिविजुअल बिजनेस, आदमी। नहीं नहीं बिजनेस की बात कर रहा हूँ सर, नहीं, जो बिजनेस की एमएसएमई बात नहीं। वगैरह। ओके ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पीपल। ओके, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट के और वो टैक्स तो अलग होता है ना वैसे भी। बिजनेस का तो टैक्स रेट भी अलग होता है, इंडिविजुअल जैसा थोड़ी होता है। ओके, ऑलराइट। अच्छा। नाउ वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। तो जो ये अभी पॉइंट रेज हुआ था कि किसी को अगर दुख देना है तो 11.9 से उसकी बढ़ा के 12.1 कर दो या 12.2 कर दो, तो उसको जो एक्स्ट्रा टैक्स रहेगा, तो ही विल बेसिकली इट विल बी मच मोर देन दिस इंक्रीज इन सैलरी। तो 20,000 रुपये सैलरी बढ़ी, और जैसा कि हमने कैलकुलेट करा कि 63,000 रुपीज टैक्स लग गया उसका, राइट? तो उसको तो नुकसान हो गया बेचारे को। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली। निकाली क्या मतलब, एक कहते हैं जिसको कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। ओके, तो मार्जिनल रिलीफ वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम जब आई थी, टू इंश्योर दैट टैक्स पेयर्स विद इनकम स्लाइटली अबव द एग्जेम्पशन लिमिट डू नॉट पे एक्सेसिव टैक्स कंपेयर टू दोज अर्निंग बिलो द लिमिट। तो ये स्पेसिफिकली इसी के लिए है। तो इसमें हाउ डज इट वर्क इज दैट सपोज किसी के पास में 12,10,000 रुपीज की इनकम है, तो ये 12 से ऊपर है, राइट? तो हमने निकाला कि टोटल टैक्स इसका जो बनेगा वो 61,500, सॉरी मैं 63 गलत लिख दिया, क्योंकि 10,000 के ऊपर 15% है, सॉरी माई मिस्टेक, 10,000 के ऊपर 15% है। तो 20,000 रुपये तो उसको 4 लाख के ऊपर है, 40,000 उसको नेक्स्ट 1 लाख के ऊपर है, और फाइनली 15% और रिमेनिंग 10,000 विच इज 1,500। तो 61,500 उसका टैक्स बना, 63 नहीं बना, सॉरी माई मिस्टेक, 61,500। तो ऑब्वियसली 10,000 रुपये ऊपर होने पे इतना ज्यादा टैक्स, तो ये तो नाइंसाफी हो गई। देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज गिवन हिम मार्जिनल रिलीफ, कि भाई तेरे को हम 51,500 की मार्जिनल रिलीफ देंगे। दैट मीन दिस 61,500 माइनस हिज ओवर एंड अबाउट 12 लाख जो सैलरी हुई, इसको माइनस करके वो कहते हैं कि भाई 51,500 तेरे को हम मार्जिनल रिलीफ दे दें। देयरफॉर दैट मीन्स यू विल पे ओनली 10 लाख का टैक्स। Okay, so 10,000 का टैक्स। So this fellow will pay 10,000 rupees tax. Okay, so this fellow will pay 10,000 rupees. तो उसको इतनी मार्जिनल रिलीफ दे दी गई है। नाउ लेट्स टेक अ सिचुएशन वेयर somebody earns 12.2। तो 12.2 में उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी? 20,000 प्लस 40,000 प्लस जो 20,000 का 15%, विच इज 3,000, 3,000। राइट? विच विल नाउ बी 63,000। तो इसको कितना मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा? इसकी सैलरी 20,000 रुपये ज्यादा है 12 लाख से, तो इसको 43,000 का मार्जिनल रिलीफ इसको दे दिया जाएगा। दैट मीन्स ही विल हैव टू पे 20,000 एज द टैक्स। तो उसको नुकसान नहीं हुआ, तो उसको 20,000 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। सी द पॉइंट इज दैट सपोज आपकी सैलरी 11 लाख से 11.9 से लेके 12.2 हो गई, ठीक है? तो अब आपने 30,000 रुपये की आपकी सैलरी बढ़ी, और उसके लिए आपको 63,000 रुपीज का टैक्स सेंशन आ गया, तो वो तो नाइंसाफी होगी ना। तो उन्होंने कहा भाई तू एक काम कर, 43,000 टैक्स रिलीफ ले, मार्जिनल रिलीफ ले, और तू सिर्फ 20,000 दे दे, तो चल तेरे को 10,000 का तो फायदा हुआ, राइट? यू आर एटलीस्ट बेनिफिटेड बाय 10,000 रुपीज, बिकॉज 30,000 रुपीज योर सैलरी वॉज इंक्रीज, एंड आउट ऑफ दैट यू पेड अ टैक्स ऑफ 20,000। सो दिस हाउ दिस वर्क्स। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से चलते जाता है ये। व्हाट इज द लिमिट? यस, अभी अभी लिमिट भी आ रही है इसकी। ओके, वी आर जस्ट गेटिंग देयर। अब ये हो गया 20,000। अब सपोज करो किसी की 12,40,000 है ना, तो 12,40,000 में उसको 26, सपोज 20,000, ठीक है? 20 प्लस 40 प्लस 40,000 के ऊपर 15%, मतलब 6, तो उसकी 66 बनी लाइबिलिटी। तो ये 40,000 ऊपर है, तो विच मीन उसको 26,000 की लिमिट मिल गई, मार्जिनल रिलीफ मिल गया, तो उसको 40,000 का टैक्स देना है। ओके, सो इसको 26,000 की मार्जिनल रिलीफ मिला। अब ऐसे चलते जाएंगे,
क्योंकि ऐसे चलते जाएंगे और यहाँ पे जब हम पहुंच जाएंगे 12,75,000 पे, तब आपका इतना टैक्स बनेगा और तब आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। सर एक बार प्लीज दोबारा से रिपीट कर सकते हैं क्या, मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे हो रहा था? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि सपोज करो किसी की इनकम 12.1 लाख है, ठीक है। तो 12.1 लाख के ऊपर उसको कितना देना है? 20,000 रुपीज उसको पहले स्लैब में देना है, 4 से 8 वाले में 5%। 40,000 रुपीज उसको देना है 8 से 12 वाले स्लैब में, और 10,000 के ऊपर 15% उसको देना है, मतलब 1.5 थाउजेंड उसको देना है लास्ट स्लैब में जो उसका है 15% वाला, तो उसको 61.5 थाउजेंड देना है। लेकिन उसकी सैलरी बढ़ी है सिर्फ 10,000 फ्रॉम 12 लाख, मतलब इट इज 10,000 मोर देन 12 लाख। तो उसको बोला जाएगा कि भाई तू एक काम कर, तेरे को मार्जिन रिलीफ दे दिया 51.5 का, तो तू सिर्फ 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दे, मतलब 10,000 रुपीज टैक्स भर दे। तो मतलब 12.1 से लेके फिर 12.2, 12.3 जितना भी चलते जा रहा है उसको बोला जा रहा है कि तू 12 लाख रुपए तक के लिए रख ले और बाकी का टैक्स दे दे। तो किसी को अगर सपोज करो 12.3 है किसी की सैलरी, तो उसको 20 प्लस 40 प्लस 30,000 रुपीज के 30%, 15% कितना हो गया? 4.5। तो इसको टैक्स बना 64.5। तो उसको बोल देंगे कि भाई तू तेरे को 30,000 रुपीज ही सैलरी देना है, तो तेरे को 34.5 का मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा। तो तेरे को 30,000 रुपीज टैक्स देना है, मतलब आइडिया इसकी उसको टैक्स काटने के 12 लाख रुपए मिल जाए साथ में। कब तक? जब तक कि उसकी सैलरी 12.75 नहीं पहुंच जाती। 12.75 जब पहुंच गई तो उसके बाद में उसको कोई मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 लाख उसकी ऑलरेडी बन चुकी है आफ्टर टैक्स। उसके बाद में फिर नहीं मिलता है, राइट। सो 12.75 विल बी द लिमिट फॉर मार्जिनल रिलीफ हियर। ओके, गॉट इट सर। ग्रेट। आगे चलते हैं। उसके बाद में इन्होंने ये एक दो चीजें और करी है। टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन डबल कर दी है। टीडीएस ऑन रेंट, राइट। रेंट अगर आप अपने प्रॉपर्टी दे रखी है और पहले 2.4 था तो आपको टीडीएस काटना पड़ता था, अब आपको 6 लाख बढ़ा दिया है। तो दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बेनिफिट पीपल। वॉलंटरी कंप्लायंस, टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिपोर्ट्स रिटर्न जो है वो 2 से 4 साल कर दी गई। रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन, राइट। तो ये इन लोगों को रिड्यूस कर दिया गया। सो बेसिकली these are all steps in order to facilitate, provide ease of compliance and all of that. Yes, Swarnab. सर ये जो 12,75,000 का बता रहे थे कि जो स्लैब में, तो ये कि इस स्लैब में से एप्लीकेबल है या फिर 15 वाले उस स्लैब में भी एप्लीकेबल होगा ये? नहीं 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 नहीं, ये कहीं और नहीं है। ये सिर्फ जहां पे 0 देना पड़ता है आपको, ठीक है, और उसके बाद में फिर आप एकदम से ज्यादा देना पड़ता है, ये सिर्फ वहीं पे है। 12 से 15 में तो आप ऑलरेडी दे रहे हो ना, यस। तो यू डोंट नीड। ओके। Okay, so now we're done with the tax wala thing. Now let's look at some other hard numbers. The breakup of the receipts and expenditures. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, अंडर व्हाट हेड्स एंड वेयर यू आर स्पेंडिंग। सो rupee comes from 22%, as you can see, is going to come from income tax. Just imagine that आज से कुछ साल पहले तक ये 15% भी नहीं होता था, and it was low, way below the GST, and it was way below the corporation tax. But now this has got 22% weightage in the inflow. And just imagine that this is also after providing, because ये जो इनकम टैक्स की स्कीम चेंज की है इसके कारण ये कह रहे हैं कि we will get a hit of 1 lakh crore. That means our revenue will reduce by 1 lakh crore. But which means that they are confident that they will be able to make up for it by the increase in income tax or maybe some other taxes which will be more than this, क्योंकि बजट का साइज तो बड़ा ही है। तो that is why they were able to give, right, क्योंकि इनको उससे कोई हिट नहीं होने वाली ज्यादा। यस अशांत। सर इसमें इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इस बार कम कर दिया है, इसलिए भी देवर इन कंफर्टेबल पोजीशन की नहीं, 1 वो लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम इस बार हो गया ना लास्ट ईयर में, लेकिन अगले साल के लिए जो बजटेड है वो कहाँ कम किया है? वो कम किया है क्या? नहीं नहीं सर, परसेंटेज टर्म्स में तो बड़ा है, बट वैसे उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ का हम वहां से हिट लेंगे ओके, वी विल जस्ट टेक इस इट। बार। ओके। So then excise duty, right? Now, as we know that there are certain items on which GST is not applicable, which are fuel and
इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्कोहल। अल्कोहल, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है एंड उसके ऊपर वैट भी लगता है। तो ये जो है एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन है। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस आर 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स इज 17%। देन वी हैव कस्टम्स ड्यूटी, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में जैसे कि सपोज करो आपका, तो इसमें क्या आएगा? एनीवन व्हाट वुड फीचर इन नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स? सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स और प्राइवेटाइजेशन। हाँ, मतलब आपने अगर कोई स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कर दिया है, राइट, या फिर आपने अगर कोई कोल ब्लॉक्स ऑक्शन कर दिया है, राइट, तो गवर्नमेंट एसेट्स को आपने अगर बेच दिया है या ऑक्शन कर दिया है, तो दैट विल बी अ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। देन नॉन टैक्स रिसीट्स, अब जैसे बहुत सारे आपके दूसरे टाइप के ड्यूटीज वगैरह होती हैं जो कि नॉन टैक्स टैक्स टाइप के होते हैं, तो वो आपके 9% हो गए। एंड देन 24% of that will come from borrowing, right? Because obviously we run a fiscal deficit, right? Fiscal deficit होता है, that means the expenditure is more than the income and therefore you have to borrow. 24% of your budget you will borrow. Okay, so that will add to the fiscal deficit. Yes, Sushant. सर एक फैक्ट और था, मतलब फिगर आई हर्ड इट समवेयर दैट 22% इनकम टैक्स विच इज बीइंग लाइक गिवन बाय पीपल, तो 2% लोग ही 22% ये भर रहे हैं, 2% ऑफ द पॉपुलेशन। करेक्ट। देखो अभी कुछ ऐसे फिगर्स थे that obviously now when you have moved out people who are earning till 12 lakhs from the tax paying bracket, so you have taken off I think 3-4 करोड़ लोगों को आपने हटा दिया है, और अब जो जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं उनकी संख्या और कम हो गई, राइट, 2% से भी कम हो जाएगी। तो people are saying that these 2% are taking the load of the entire country, right? So which is also unfortunate, which is why they need to bring more people into the tax net. एग्रीकल्चर इनकम वगैरह की तो बात करते नहीं है ये, प्लस जो इवेट करते हैं उनको पकड़ने की बात। सो सी अगेन द होल पॉइंट इज दैट पॉलिटिशियंस हैं ये लोग, इनको भी पैसा चाहिए अपने कैंपेन्स रन करने के लिए, तो इसीलिए दे डोंट गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट in order to catch, because otherwise we keep hearing about a lot of scams, a lot of expose where some IT or some income, some government official, bureaucrat caught with hundreds of crores of rupees। तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं इवेजन के। तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, मतलब I mean we can't do really anything about this. Corruption is a different issue altogether. So there's a parallel economy in India which runs on black money and it is thriving. Where does the money go to? Right, so interest payments 20%, okay, significant amount. Central sector scheme, centrally sponsored schemes, right, तो ऐसे फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, तो ये अलग अलग हेड्स हैं। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, डिफेंस 8%, मेजर सब्सिडीज। सो अगर हम देखें तो इस तरीके से ये रुपये को खर्च करें, राइट। रिसीट्स, तो अब अगर फिर से इसको अगर हम नंबर्स में देखें, अभी तक हमने परसेंटेज के टर्म्स में देखा था, तो रेवेन्यू रिसीट्स, राइट, सो दिस वाज द एक्चुअल इन 2023-24, दिस वाज द बजटरी एस्टिमेट। दैट मीन्स जब लास्ट ईयर का बजट आया था तब ये फिगर दिया गया था कि इतना हम लाख करोड़ कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, विच मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। रिवाइज एस्टिमेट दे दिया गया है कि वो थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो जाएगा वहां पे, सम 40,000 crore is shortfall here. Obviously, it could be because of the lack of, economy not growing as what they expected. GST थोड़ा कम कलेक्ट होगा तो उसके कारण ये कम हो गया। और 2025-26 का इन्होंने एस्टिमेट 34.2 दे दिया है, which means there is a significant, quite significant jump in this. This is about the revenue receipt. Capital receipts जो है वो इतना एक्चुअल हुआ था 23-24 में, इतना बजट किया था, इतना और कम हुआ, तो इट इज नॉट केप्ट अप टू द मार्क, एंड देन नेक्स्ट ईयर वुड बी रफली मोर देन दिस। तो यहाँ पे जो डाइवेस्टमेंट करते हैं और जो सो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में अपना डाइवेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने LIC को लिस्ट कर दिया, या और भी बातें चल रही हैं अलग अलग PSUs की, और अपने एसेट्स वगैरह बेच दिए, तो ये सब चीज़ें करते हैं।
effective capital expenditure, right? So this is about the capital expenditure. 2023-24 actuals इतना था, इतना उन्होंने बजटरी एस्टिमेट किया था, और ये एक बहुत ही हिट हुआ है इस बार, right? Revised estimate. So this has fallen down drastically. Some say because of elections, some say because of different factors, but definitely this has hurt the GDP growth, and next year it is increased to 15.5. Revenue expenditure. See, this is what hurts the maximum. Revenue expenditure is basically the expenditure incurred to run all the government, the entire government machinery, right? सबकी salaries, सबके establishment expenses, transportation and everything else. जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें या हम अर्जेंटीना की बात करें, तो अर्जेंटीना we've seen that it is now so far whatever indications have, they've slashed the government expenditure by 80%, and they have reduced the inflation to very very manageable levels. यूएस में जो उसने बनाया है ट्रम्प ने, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो ये एक वॉर फुटिंग पे दे हैव गॉन अबाउट ट्राइंग टू रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस. एंड इनफैक्ट व्हाट आई मीन एवरी डे आई एम रीडिंग सम ऑफ द अदर ट्वीट फ्रॉम इलॉन मस्क व्हिच सेज दैट टुडे, मतलब वो हर दिन के देख रहे हैं कि आज हमने इतने मिलियन का एक्सपेंस कम कर दिया, आज हमने इतने मिलियन का एक्सपेंस कम कर दिया. तो दे आर काइंड ऑफ टारगेटिंग on a war footing how to reduce basically this. This is what they are targeting, because this is what leads to a huge amount of deficit, which leads to a lot of borrowing, right? And which is not very good, because ultimately you end up borrowing to pay your debts, and that leads to a lot of inflation also, and a lot of problems for people. So therefore इसको काटने की बात. अब ये हमारे यहाँ पे इंडिया में ये सब चीजें तो शायद ना हो पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर सरकारी आदमी जो होता है वो अपने आप को एक VIP और मंत्री, एक राजा से कम नहीं समझता. You can look at any of these officers, bureaucrats, the kind of lifestyle they lead in terms of the facilities they have, whether it is manpower or it is the other facilities that they get. It is huge. Yes, Ashank. सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसमें डिफरेंस क्या है? कैपिटल This is इज productive. This is productive. दिस इज आपने इन्वेस्टमेंट. आपने पोर्ट बना दिया एक, राइट? हाँ या हाईवे बना दिया आपने एक, या रेलवे लाइन बना दिया आपने, या एयरपोर्ट बना दिया आपने एक, राइट? या फिर वाटरवे बना दिया आपने. सो यू आर बेसिकली प्रमोटिंग द इकोनॉमी, राइट? अगर आपने एक हाईवे बनाया कहीं पे, तो दो सिटीज या दो डेस्टिनेशन के बीच में जब ट्रैवल बढ़ेगा, फ्रेट बढ़ेगा, तो इकोनॉमी बढ़ेगी. तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसमें. सिमिलरली आपने रेलवे से कनेक्ट कर दिया किसी को, या पोर्ट्स बना दिया, या एयरपोर्ट बना दिया आपने. तो वंस यू आर डूइंग ऑल दीज आर प्रोडक्टिव एसेट्स. गवर्नमेंट व्हेन दे इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दिस, देन दिस लीड्स टू इंप्रूवमेंट, इंक्रीज इन GDP. ये तो आप सैलरी दे रहे हो किसी की, सैलरी तो चलो एक तरफ, आप दूसरे खर्चे पाल रहे हो. अगर वो सरकारी आदमी है, उसको 2-2 गाड़ियां मिली हुई है, उसके घर वाले उस गाड़ियों में घूम रहे हैं लाल बत्ती लगा के, और 10-10 लोग उसके यहाँ पे नौकर बने घूम रहे हैं. उसके घर वाले जो है वो उन नौकरों से 4 बार खाना बनवा रहे हैं और पार्टियां दे रहे हैं. I have known so many of them. Some are my friends also, and so I've seen all this. I mean, I'm sure all of you would have someone or the other in the family or your known acquaintances who are government officials. तो वो किस तरीके से उनके ऑफिसेज होते हैं, किस तरीके से एक्सपेंडिचर करते हैं वो. सी सैलरीज कुछ नहीं होती, इट सैलरीज आर वेरी एवरेज कंपेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय. मतलब उसके सामने तो शर्म आ जाए उसको, लाइक इस तरह की सैलरीज होती है. बट द पॉइंट इज दैट ऑल दीज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन देम, ओके, दे आर ह्यूज. तो दिस इज द थिंग दैट हर्ट्स द मोस्ट, बिकॉज अगर आपका रेवेन्यू इतना नहीं है. अब आप देखो कि आप रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो. सपोज 34 लाख करोड़, और उसके ऊपर खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आप कर रहे हो? 39.4 लाख. दिस इज अ वर्स्ट सिचुएशन दैट you are your revenue receipts are less than your revenue expenditure. मतलब आप अपने खर्चे निकालने के लिए, जैसे इसको कहते हैं कि सपोज करो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होगा कि मेरे रेंट, या फिर मेरा कम्यूटिंग, या फिर मेरा क्लोथिंग, बेसिक थिंग्स. अगर मैं बेसिक थिंग्स को फाइनेंस करने के लिए भी अगर मैं लोन ले रहा हूँ, दिस इज लाइक
आई एम स्पेंडिंग 125 रुपीज फॉर माई बेसिक थिंग्स. हाँ, अगर मैं कोई एसेट खड़ा कर रहा हूँ, सपोज आई एम बिल्डिंग अ हाउस, राइट, और आई एम बाइंग सम एसेट शेयर्स और समथिंग, और गोल्ड या समथिंग, मैं एसेट खड़ा कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ, तो चलो एक बार समझ में आती है बात. अगर मैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चलाने के लिए लोन ले रहा हूँ, तो यू कैन इमेजिन व्हाट हाउ बैड द सिचुएशन है. तो दिस इज लाइक, if your income is 34.2 and you are targeting an expense of 39.4, and some part of this borrowing that you are doing here, right, जैसे ये हम यहाँ borrowing की बात करें ना, ये जो borrowing से 24% आएगा, some part of that borrowing will help you finance your revenue expenditure, which is a very, I mean, it's quite embarrassing and bad situation to be in. सर इसमें Plus डिफेंस this, सर इसमें डिफेंस की सैलरीज भी इंक्लूडेड होती हैं? नहीं, अच्छा, नहीं, वो अलग होंगी, वो वो डिफेंस अलग के है. उसमें डिफेंस के वो आउटले में अलग है, वो तो अलग चीज है. इसमें तो सिर्फ जो सरकारी तंत्र है पूरा हिंदुस्तान का वो चलेगा. यस, somebody was asking something. yeah, so this reminds me, I had read कि जो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनके घर में 12 ट्रेडमिल थी, अच्छा, 12 आप शीश ट्रेडमिल. महल की बात कर रहे हो क्या? So शीश, 12 treadmills and only husband and wife and they are staying. Why do they need 12 अरे treadmills यार, on आप state देखो, अभी expenditure? अभी ये शीश महल के ऊपर तो हम अगर डिस्कशन करना शुरू कर देंगे तो वी विल स्पेंड द होल नाइट डिस्कसिंग कि ये 12 ट्रेडमिल तो एक चीज है, उसके घर में क्या क्या है. व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, देन सो इट इज सेड दैट ही हैज स्पेंट 45 crores, एंड दिस इज वन पर्सन. मतलब आप उसकी शक्ल देख लो कि जब वो 2014 में या 13 में जब वो पॉलिटिक्स में आया था, तो वो कैसा दिखता था. एंड ही यूज्ड टू बी कफिंग ऑल डे, और मफलर लगा के घूमता था. So और his whole agenda was कि I am हम्म, like, I am an आम आदमी. correct. So the way he has fooled people, of course, I am not a fan of his. So maybe if somebody is a fan, then I would not like to argue right now. But the point is that ये एक जस्ट एक, so it's a very relevant example. ये बहुत आपने relevant example दिया है कि see, I have also seen personally. I've been to some of the judges of Supreme Court. उनके घर पे I've been there. So the kind of, let's say there is a judge who is appointed to Supreme Court, and उसको अब अपने एक घर में move करना है. They get these fancy big houses of Delhi के जो टॉप मोस्ट लोकेशन, तुगलक रोड और इधर अकबर रोड इधर मिलते हैं उनको. वहां पे वो जो भी नया आदमी आता है, वो पूरा घर को अपने हिसाब से फर्निश करता है, रिफर्बिश करता है. इवन दो इफ इट इज इन गुड शेप, वो पूरा टाइल वाइल चेंज कर देगा, पूरा उसका वो चेंज. दे स्पेंड crores and crores of rupees on getting done. Then after some time somebody else will come and he will do the same thing. So that is all is basically the revenue expenditure. So that culture is basically very bad, but most of the people come and work in the government because of that only. Yes, Shumanshu. सब पेंशन्स भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें? नहीं, पेंशन तो अलग है. पेंशन अलग है. पेंशन के लिए तो अलग से एक वो है, एक हेड है, क्योंकि 4% खर्चा हमारा पेंशन में भी होता है सरकार का. Okay, so anyway, coming back to this, so you see that this is something which needs to be curtailed. Okay, but unfortunately, this is not going to be. So that's where we are. And deficit, now deficit. Okay, so let's talk about different kinds of deficits. Okay, what is a golden toilet seat? चिकन मेन रेड्डी. नो बिल्कुल. हमारा जो ये है अखिलेश यादव, तो आपको भी टोटी चोर भी बोलते हैं उसको, कि उसने भी टोटियां घर में टैप्स लगा रखे थे गोल्ड के उसके, और जब मैंने मूव्ड then he took away all those taps, right? तो टोटी चोर भी बोलते हैं उसको, अभिषेक, सॉरी, अखिलेश यादव को. तो I mean that's quite common, but what to do? Can't do anything. So now let's talk about different kinds of fiscal deficit. तो deficit होते हैं जो, okay, fiscal deficit और revenue deficit और primary deficit. बताइए, what is the difference? Does anyone know what is the difference between these three? Yes, Ashank. फिस्कल डेफिसिट में भी जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है एंड जितना गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, टोटल उसमें एक्सपेंडिचर, टोटल हाँ एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट. रिसीव, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, राइट. ठीक है, जैसे सर अभी था माइनस, हाँ, अभी आप दिखा रहे थे उसमें. ठीक है. और व्हाट अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट? Sir, but we don't include the borrowings in total दैट इज deficit इन, in. नहीं, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट. अच्छा. ओके, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट.
So इंटरेस्ट primary पेमेंट deficit is नहीं नहीं basically fiscal deficit minus interest payment. इंटरेस्ट पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स हाँ प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ओके so this is always lower than fiscal deficit but revenue deficit is basically the ये revenue deficit तो ये है ना ये revenue expenditure minus revenue receipt okay revenue expenditure minus revenue receipt is the revenue deficit and that is something which is the most dangerous of all so this is how things stand and this is given as a percentage of GDP right 4.4% of GDP अब ये भी लेकिन कम हो गया है क्योंकि अगर हम देखें लास्ट ईयर इन्होंने टारगेट किया था 4.9% दिस वाज द बजटरी एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट इज 4.98% दैट मींस वी आर डूइंग प्रीटी गुड ओवर हियर एंड नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग 4.4 तो दिस इज ओके आई मीन दिस इज तो गवर्नमेंट का एक FRBM होता है राइट दिस ऑल्सो वी शुड नो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट उसके अंडर में हम टारगेट्स देते हैं और फिजिकल डेफिसिट तो सी आई मीन पर से देखोगे तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है right? इतनी की लगती है बट ऑब्वियसली दिस कैन बी मच मच बेटर सो अगर हम देखें ये ट्रेंड्स इन नेट रिसीट इन सेंटर और ये ठीक है टोटल ट्रांसफर ये देख लेना अब कोई ऐसा आई मीन एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स इट्स नाउ दिस डिफेंस इज रूरल डेवलपमेंट होम अफेयर्स एग्रीकल्चर एजुकेशन जस्ट इमेजिन एजुकेशन बीइंग ओनली 1,24,000 and health being only this so this is kind of percentage अगर हमारी GDP है 320 लाख करोड़ राइट और उसमें से अगर 1.2 लाख करोड़ दिस इज लेस देन 0.3% राइट दिस इज लेस देन 0.3% ऑफ GDP विच इज क्वाइट मिनिस्क्यूल हेल्थ का तो और भी कम है राइट लेस देन 0.25% ऑफ GDP सो दैट्स इवन लेस विच इज समथिंग विच वी शुड इंक्रीज यस अशांक सर तो फिर रूरल डेवलपमेंट में 266 इसमें क्या होता है इसमें फार्म लोन्स होते हैं रूरल डेवलपमेंट में देखो रूरल डेवलपमेंट में जैसे अब अभी इसने वो नहीं फार्म लोन्स नहीं होंगे इसमें जो जैसे हमने देखा वो एग्री डिस्ट्रिक्ट धन धान्य योजना बनाएंगे और कुछ और अगर लेट्स से कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस कुछ बनाएंगे वहाँ पे तो इस तरह की जो भी सीड्स के ऊपर जो भी उनकी वो चल रही है स्कीम वो करेंगे इट्स ऑल दोज थिंग्स विल बी इन पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो कुछ एग्रीकल्चर में भी आ जाएगी इनफैक्ट वो वाली जो चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर में भी आ जाएगी बट रूरल डेवलपमेंट में ये सब आएगा आई थिंक मनरेगा जो होता है वो भी रूरल डेवलपमेंट में आता है जो इनका वो है ना रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम दैट आल्सो विल कम यस सर डेवलपमेंट यस कुणाल सर ये इस साल की फिगर से है मतलब इस बजट के फिगर से ये हाँ इस बजट के हाँ मतलब ये अगले 25-26 में इतना खर्चा करेगी सरकार इनके ऊपर बट आई रेड कि डिफेंस में इस बार कुछ 6.5 lakhs crores they are expenditure is doing by government 6.5 लाख करोड़ हाँ ओके लेट मी सी कहीं तो मैंने और भी देखा था लेट मी जस्ट सी वेदर एक मिनट गवर्नमेंट स्कीम्स ये थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है और नेशनल सोशल असिस्टेंस रोड्स डेवलपमेंट यहाँ डिफेंस का दिया गया ना यहाँ पे नहीं यार 4.91 लाख करोड़ यही है ओके तो मे बी कुछ और आपने देखा होगा या तो बट दिस इज द सेम देखो ये पेंशन जो अभी बात हो रही थी पेंशन अलग है राइट पेंशन अलग है देन सब्सिडी राइट दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल थिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी फूड सब्सिडी तो ये जो सरकार जो देती है ना जो किसानों को उसने किसानों को 80 लाख 80 करोड़ लोगों को जो अन्न योजना है वो इतना कॉस्ट करती है राइट पेट्रोलियम एग्रीकल्चर अलाइड एक्ट तो ये वही यही है आई डोंट नो आप 6.5 कहाँ आया मैंने मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट नहीं तो मैंने पढ़ा था कि 6.5 lakhs में से like 1.92 lakhs और like somewhere around 2 lakhs crores is used for capital one मतलब जो अच्छा वेपन्स खरीदते ओके हैं उनके लिए ओके तो बाकी फिर वो रिमेनिंग इसमें इज फॉर इंक्लूड नहीं किया दैट इज नॉट इंक्लूडेड ये बेसिकली उनका सारा एस्टैब्लिशमेंट सैलरी ये वो सब उस सब का होगा ये ओके यस शुभांशु सर ये फूड वाला जो आपने बताया ये कोविड में वो सब पॉलिसीज लाए थे वो वाला थे क्या कौन फिर से कि फूड अनाज हाँ का वही है 80 करोड़
अच्छा, अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट जो नंबर आपको याद रखना है वो ये है कि टोटल बजट का साइज हमारा 50.65 करोड़ लाख करोड़ है। बजट का साइज जो है ना, मतलब इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे और इतना ही हमारा इनकम भी आएगी बोरोइंग मिला के, राइट। तो 50.65, तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ द बजट, तो साइज ऑफ द बजट इज 50.65 लाख करोड़, जो कि पिछले साल से 7.4% बढ़ा है। मतलब पिछले साल मुझे याद है कुछ 47 48 ऐसा कुछ पर लाख करोड़ का, तो ये बढ़ा है, राइट। सर एजुकेशन एंड 48.2 था। हाँ 48.2 था, right। तो फिर 7 पॉइंट, अच्छा रिवाइज एस्टिमेट में कम हो गया वो, 48.2 था, बट रिवाइज एस्टिमेट क्योंकि 1 लाख करोड़ उन्होंने डिफाइन उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम किया ना, तो इसलिए 7.4% बढ़ा दिखा रहा है रिवाइज एस्टिमेट से, नॉट द बजटरी एस्टिमेट, है ना। एंड तो एजुकेशन बढ़ा रहे हैं 13%, कुछ हेल्थ एलोकेशन भी बोल रहे हैं बढ़ाया है, बट आई डोंट नो, रूरल डेवलपमेंट बढ़ा दिया जा रहा है, इतना इतना बढ़ा दिया इतना। सो मेजर अनाउंसमेंट और इनका, ठीक है। मैं आई मीन दिस आई जस्ट लीव इट फॉर यू टू डाइजेस्ट। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, इसमें जितना डेप्थ में अगर किसी को जाना है तो you can go into that depth. So we'll quickly again look at the key announcements here. So capex target is 11.2 lakh crore, marginally up from this level of this. 1.5 lakh crore is 50-year interest-free loan for capital expenditure. उड़ान स्कीम हमने बात कर ली, एफडीआई लिमिट बढ़ गई है, इनकम टैक्स बढ़ गया है, फिस्कल आउटलुक इतना है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.1%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, ओके। टोटल एक्सपेंडिचर इज 50.65 लाख करोड़, ये पता होना चाहिए। मैं ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज डिस्पाइट गिविंग दिस रिलीफ। इनफैक्ट सी, ये लोग थोड़ा सा बदमाशी इसमें भी करते हैं ना, जो फ्यूल प्राइस है कि ऑयल की प्राइस बहुत कम हो चुकी है, पर ये कम नहीं करते हैं, राइट। सो दैट ऑल मनी दे मेक इन टर्म्स ऑफ एक्साइज एंड ऑल, दे मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ से 4.4%, बोरोइंग टारगेट इज दिस मच। है जो आपने एक फोटो भी शेयर करी थी कि वो टैक्स तो कम कर दिया इनकम टैक्स, बट एक्चुअल में जीएसटी कलेक्शन वगैरह काफी ज्यादा नहीं, इफेक्ट करेगा, तो वो इसलिए तो कैसे थोड़ा सा, ब्लेम है? नहीं, वो तो थोड़ा सा ह्यूमरस उसमें था यार वो। ये सर कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किया गया है ना टैक्स रिलीफ। हाँ, तो बट वो कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मतलब जीएसटी। जीएसटी, जीएसटी तो आज भी आपको हिट कर ही रहा है ना। तो दैट वाज बेसिकली जस्ट कार्टून इन ह्यूमरस वे, कि आपको एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से ले रहे हैं, राइट। बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। आई मीन इफ यू आर, लेट्स से इफ यू आर अर्निंग 12 लाख, तो आपको 80,000 रुपीज का तो नेट फायदा हो गया ना आज। तो 80,000 रुपीज इज नॉट आई मीन स्मॉल अमाउंट बाय एनी मीन्स, राइट। आप ठीक है, मतलब 80,000 रुपीज में फिर भी कुछ, सर 80,000 अगर आप खर्चा सर करोगे तो जीएसटी कितना दे दोगे आप ज्यादा से ज्यादा? अगर एवरेज जीएसटी 10% पे मानो आप, तो 8,000 जीएसटी दे दोगे उसके ऊपर, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड। तो सर ये 11% लगभग लगभग कैसे, मतलब क्या सोच के ग्रोथ हो जाएगी, मतलब ऐसे? नहीं, ये नॉमिनल ग्रोथ है, ये नॉमिनल है, ये रियल नहीं है ये। नहीं सर, ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10.8% ना सर। हाउ आर दे गोइंग टू अचीव दिस? दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी यार, आप जीएसटी के कलेक्शन जो हमारे हैं ना, दे आर वेरी रोबस्ट जीएसटी कलेक्शन। अगर आपने जनवरी का जीएसटी कलेक्शन देखा तो वो आ गया 1.978 या 94 ऐसा कुछ आ रहा है लाख करोड़। उसके पहले दिसंबर वगैरह में शायद 1.7 वगैरह तक जा गया, चला गया था 1.758। तो जीएसटी कलेक्शन बहुत हमारे स्ट्रांग है, बहुत, क्योंकि इतना टैक्स लगा के रखा है ना। प्लस जो फ्यूल के ऊपर जो एक्साइज कमाते हैं, दैट इज ह्यूज, दैट इज ह्यूज। बिकॉज क्रूड की जो प्राइस थी, जब जो 120 110 पे क्रूड चलता था, उस लेवल पे जो हमारी फ्यूल की प्राइस थी 100 रुपए पर लीटर, रफली एवरेज में अगर मानूंगा पेट्रोल की प्राइस, तो आज हमारा क्रूड 80 रुपए, $80 के, $75 के ऊपर घूम रहा है। तो यू कैन इमेजिन दैट इट हैज कम डाउन 33-40%। और आपकी क्या फ्यूल की प्राइस एक्चुअली हमारी 100 से भी 60 के ऊपर आ जानी चाहिए थी कायदे से। बट ऑल दिस डिफरेंस द गवर्नमेंट इज इंजॉइंग ना। ये सब स्कीम भी कैसे चला रखी है, इतनी फ्री भी कैसे बांटते हैं ये, बिकॉज ऑफ दिस ओनली ना। आई मीन वी पे so much of taxes on fuel, which they kind of distribute it like this as freebies to everybody. तो this is what is, see, मतलब लोग क्या सोचते हैं ना कि यार इसने 12 लाख रुपए कर दिया तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया, राइट। दिस इज हाउ इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड, बट दे डोंट रियलाइज दैट एक हाथ से लेके दूसरे हाथ वाली बात होती है ये, कि एक तरफ आप इतना फ्यूल प्राइस और उसमें खर्चा कर रहे हो, वो फ्यूल प्राइस बहुत कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि
जब वो फ्यूल प्राइस उतना था तब आपका क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा था। ओके, चलो आप 30% 40% नहीं कम करना, 20% तो कम कर दो, तो फ्यूल प्राइस अभी कायदे से 80 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। So that adds to inflation also, but the government will not do it because fuel is something which they have realized कि कितना ही कर दो लोग उतना ही खर्च करेंगे, राइट? वो तो मतलब कम कंजम्पशन कम होगा ही नहीं, एंड विच इज अ फैक्ट। मे बी पेट्रोल का मे बी प्राइस अगर, हाँ प्लस साइड देखे तो शायद ईवी बूस्ट करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई आल्सो, नहीं वो शायद वो नहीं, रीजन वो भी हो सब सकता नहीं है। नहीं नहीं, वो सब आप ऐसा सोचते हो ऐसा, बिकॉज दिस नॉट लाइक दैट। ईवी बूस्ट करना चाह रहे होंगे, बट ईवी बूस्ट करने के लिए ईवी का इंफ्रा किधर है? ईवी का चार्जिंग इंफ्रा, ईवी का बहुत सारी चीजें ईवी में भी मिसिंग है। सो आई डोंट नो वेदर ईवी इज रियली that holy grail or not, because many people are not very happy with EV, and EV का suddenly एक थोड़ा सा एक plateauing हो रहा है। That's what I'm seeing. So EV adoption जितना तेजी से बढ़ रहा था globally people are kind of, many are disenchanted with EV. Yes, Shivanshu. सर ये 120 क्रूड का प्राइस कैसे चला गया था? कोई वॉर वॉर चल रहा था उस समय? क्या चीज 120 करोड़? हाँ 120 जो हाँ क्रूड का। हाँ, वॉर जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था और ये हुआ था तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना। और सडनली जब कोविड के बाद में डिमांड बहुत बढ़ गई थी। देखो कोविड में फ्यूल की प्राइस खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। इनफैक्ट एक बार ऐसा ऐसा टाइम आया था, आई रिमेम्बर, तब जीरो हो गई थी। पीपल सेइंग दैट क्रूड की प्राइस इज डर्ट चीप, बिकॉज कोविड में सारी इकोनॉमी एट अ हॉल्ट हो गई थी, राइट? नोबडी वाज बाइंग एनीथिंग, तो क्रूड वाज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। देन सडनली कोविड के बाद जब इकोनॉमी सारी की सारी एकदम स्टिमुलस मिला और बूस्ट हुई, तो क्रूड की प्राइस, और फिर उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था, तो क्रूड की प्राइस उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमारे जो प्राइसेस हैं, कहते हैं इट्स इज मार्केट लिंक्ड, बट जब वो बढ़ने के टाइम पे मार्केट लिंक्ड होती है, जब बढ़ता है तो फिर हम भी बढ़ा देते हैं, लेकिन जब गिरता है तो फिर लोगों को फायदा नहीं देते। दैट्स व्हाट इज आवर मार्केट लिंक वाला डेफिनेशन। ओके, तो दैट्स व्हाट सर, देखो सरकार जो है वो बहुत होशियार है ना, ऐसी थोड़ी दे देगी आपको 1 लाख करोड़ रुपए दे देगी और वो आप सोच रहे हो कि आपका भला कर दिया उन्होंने, आप गुणगान कर रहे हो। तो people who kind of have use their brain and analytical thinking, critical thinking, they will know that ऐसी थोड़ी है। they can give even much more, I mean they can reduce a lot of things, GST नहीं कर रहे क्योंकि वो क्या करते हैं, सी दे आर एबल टू असेस कि कोई भी चीज की डिमांड जो है कितनी प्राइस सेंसिटिव है। तो फ्यूल इज समथिंग जो कि जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी है ही नहीं। फ्यूल की प्राइस बढ़ाते जाओ, कोई डिमांड कम नहीं होगी उसकी, बिकॉज जितना लोग चला रहे हैं गाड़ियां उतनी बिकी रही हैं, उतना लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं ऑयल को, तो वो कम हो ही नहीं रहा है, तो चाहे कितनी प्राइस बढ़ा लो, राइट? सो दैट्स व्हाट दे डू। तो जनता भी कम नहीं है तो जनता भी कम नहीं ना। तो जैसे माइक्रो इकोनॉमी वगैरह वाले जितने भी है वो हम्म, फुल टैक्स कहाँ पर पे कर रहे हैं? अभी तक हाँ भी मतलब कच्चा बही खाता बनाया जा रहा है। हाँ, ये तो सी जीएसटी आने थे लोग कह रहे थे या डिमोनेटाइजेशन आ गया कि 2 नंबर की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोई खत्म नहीं हुई, कुछ खत्म नहीं हुई। अभी भी जो जीएसटी इवेजन, इनफैक्ट जीएसटी के ऊपर कितने सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, लोग वो इनपुट क्रेडिट, वो कई सारी कंपनी है जो मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ फ्रॉड्स हैव बीन आल्सो फाउंड कि नकली वो क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, राइट? ओके, सो आई जस्ट kind of halt this particular recording here now.